Yes. So we were in the last meeting or in the previous meeting, we were describing or we were discussing about the stresses the human being suffers and what are the region and what are the consequences. What are the various type of stresses we have seen? Just we will take a small review what was discussed in the what was discussed earlier with you. And we have seen there are three type of stresses human beings suffer. They are acute stress, episodic stress, and chronic stress. Episodic stress maybe because of the temporary problems arises, temporary situations arises, and it may go in after the situation has been finished. That is, it may exist, it may remain for short duration of time, for minutes to the month. But when such situation arises again and again, and we are not able to enjoy the life, then it becomes the episodic stress. And we have seen if this stress persists for the long duration of time, then it is called the chronic stress. And we have seen this figure that if we are suffering with the acute stress, that in this period here, if we are suffering here, that if the stress is not there, then the strength will not be there. And there are we suffer with the anxiety because of the situations, and we can handle this by our own self, and we can take the help of psychologist, we can take the help of counselor, we can take the help of psychotherapist if the problems we are not able to handle our own. And we are reviewing whatever was discussed in the previous meeting. And if the situation arises again and again, means if we are suffering with the episodic stress and we are not able to live life happily, then the episodic stress is there. For that, there is need to go to the psychiatrist. And if the situation go beyond that, means stress is further increased. The more stress if you are suffering, and if you are not taken, if you are not able to handle those, and neither you nor your counselor is or a psychologist or counselor help you, then if you don't take care by any of the region, then you can see then thus those problem, those stress goes to our body, and then we suffer with the blood pressure, sugar, acidity, and we need to take the help of the our physician. We have seen that these stresses, yes, please, that the stresses are may cause various type of diseases. These stresses may have the various mental states. We have seen in the previous discussion that these stresses are worry, obsession, jealous, anger, possessive, greed, suppression, tension, and you have seen if such type of mental states are there, what type of diseases we are prone to, what type of diseases we may face. And this, so you can see these mental states not only affects our physical health, but it also affects our personal life, personal progress. It affects the economy, it affects our family, it affects our relations and society. You see, if you are suffering, suppose you are suffering with blood pressure, what will you have to go to the doctor again and again? Not only the health, your life will be at risk, at risk.
and at the same time you will suffer, you will have the lot of expenditure will be there, you are going, lot of time wastage will be there going to the doctor, and thus your economy will be affected. And not only that, your family will be in pressure because of your blood pressure. Your family will be affected. They will not be happy if any of the family member is suffering with some disease. So, and if you are having some disease, no doubt you cannot do your work very well. Very well means पहले आप जिस तरह आप पढ़ाई में मन लगा पा रहे थे, अगर आपके पास ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं तो उतना आप पढ़ाई को कंसंट्रेशन से नहीं करेंगे. आपका जो दूसरे काम है, सपोज यू आर डूइंग सम बिजनेस, यू आर डूइंग सम इंडस्ट्री वर्क, तो आप उतनी अच्छी तरह you will not be able to give the output. So then your personal progress will be affected, your promotion will be affected, your output will be affected. No doubt, if you have some problem, then your family, you cannot interact the change of energy with your relatives, so relations will be affected. And if as on now you see most of the human beings are suffering with several type of diseases, so if the group of human being suffers with the problem, then the whole society's consciousness changes and whole society, the progress will be affected. Thus, this is very important. अगर आप देखिए ये चीजें फिर बहुत important हो गई कि आपकी mental state से केवल आपका health ही सफर नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें सफर कर रही हैं, तो उसको ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है. You can see, and we also have seen, it is just review that we have seen that that our original qualities are peace, power, purity, love, happiness, and bliss. And because of deficiency in that, because of we are not taking care of our peace, power, purity, then we have our respiratory, we have the problem in the respiratory system, we have the problem in the muscular system, blood circulatory system, heart system, digestive system, like this, and neuro system, and adenoid immune system. So this we have seen. Now question is, we have seen the consequences. Now question is what to do now. अब हम इसको करें क्या. ये तो पता लग गया कि भाई स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा हार्म है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. हमारी अपनी प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली की प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम है ये, और देश की प्रॉब्लम है, और हमारी हमें इकोनॉमी के रूप में, हेल्थ के रूप में, रिलेशंस के रूप में भी ये अफेक्ट करता है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट टू डू. अब हम करें तो करें क्या इसके लिए. और वी हैव आल्सो सीन दैट जो ये प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ये क्या है, दिस प्रॉब्लम इज साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, क्योंकि ये माइंड की प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है. सो इट इज यू हैव सीन इट इज ए साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम. आपका अटेंडेंस लगा के बहुत सारे लोग इसमें गायब हो गए, क्या बात है. Anyway, so this problem is the psychosomatic problem. And हमने क्या देखा कि I the driver sitting here between the thalamus and hypothalamus send the signal of peace, power, purity, love, hatred, what type of thoughts we create. According to that, we send the signal to the pituitary gland. And from the pituitary gland, there is a secretion of various hormones. These hormones control our body. So the electromagnetic waves, as I told, may be the carrier plus modulating signal. And we have also seen we know in case of a modulating signal, those who are from the electron or in any engineering side, they study the modulating and the signal. Then we know the modulating signal, carrier signal, and the modulated signal. The frequency of the modulated signal is omega c plus minus omega m. Do you know this? हाँ, इलेक्ट्रिकल वाले आपने पढ़ा हुआ फिजिक्स में या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं. दीपिका, आपको पता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द modulated signal is omega c
प्लस माइनस ओमेगा एम। पढ़ा हुआ है कि नहीं सुमित? यस सर। हाँ, ये आपने मतलब क्या हुआ, कैरियर कैरियर क्या बता रहा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी मीन्स कि हमारा बिकॉज ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी जो फिक्स फ्रीक्वेंसी विच इज नॉट, जैसे 93.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे जब शरीर में जा रही है, और 93.5 मेगाहर्ट्ज का जो सिग्नल है उस पर हम जो भी गाना बजाना चाहेंगे वो 95 उसकी उस गाने की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी 93.5 हो गई। अब वो गाना हमारा अकॉर्डिंगली जब हम ट्यूनिंग करते हैं तो अकॉर्डिंगली दैट गाना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो गाना है वो हमारा यू कैन लिसन। तो अब जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो इसके बॉडी जो नॉर्मल वे में रन करता है, जैसे ब्लड प्रेशर है तो उसका एक स्पेसिफिक रेंज है, हार्ट बीट है उसका स्पेसिफिक रेंज है, ऐसे ही आपका शुगर का लेवल है वो उसका स्पेसिफिक रेंज है, वो बिकॉज ऑफ दैट। एंड नाउ बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो हमारा थॉट्स, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी 93.5 मेगाहर्ट्ज है, और ओमेगा एम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज करिए 200 हर्ट्ज है, तो 200 प्लस माइनस की रेंज में हमारा सिग्नल वर्क करेगा। तो इसी तरह जैसे हमारा हार्ट बीट है, तो अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर हमारा डिस्टर्ब है तो हमारा हार्ट बीट एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड, अदरवाइज दे आर रनिंग एट नॉर्मल, दे आर वर्किंग एट नॉर्मल स्पेसिफिक रेंज। नाउ क्वेश्चन इज इफ दिस इज हैपनिंग देन हाउ टू हैंडल। तो हम एज ए इंजीनियर्स हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को अगर समाधान निकालना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल में आपने देखा है कोई भी समाधान निकालते हैं तो पहले हम सिस्टम को मॉडलिंग करते हैं। जैसे आपने देखा एजीसी में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल हो गया या वोल्टेज कंट्रोल हो गया, तो हम उसका मॉडलिंग करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली फिर हम उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कितने डिस्टर्बेंस के लिए क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए एज एन इंजीनियर्स हमने इसमें भी क्या किया, हमने देखा, देखिए वी हैव सीन द स्ट्रेस, हमने इसको इस तरह मॉडल किया, स्ट्रेस इज इक्वल टू डिजायर माइनस कैपेबिलिटी ऑब्लिक इनर स्ट्रेंथ। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच वी हैव रिटन इन दिस फॉर्म। देखिए इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा आपका डिजायर माइनस कैपेबिलिटी, इसको ही आप समझें प्रेशर है, आपके ऊपर प्रेशर है या फोर्स है, जिसकी वजह से जितना फोर्स होगा उतना ही आपका स्ट्रेस होगा। हमने ये ऊपर भी देखा है, देखिए यहाँ पे भी आपने देखा, जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे, जितना स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, मीन डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो अब हम किस पे काम करेंगे, इफ वी रिड्यूस दिस प्रेशर फोर्स, अगर हमने स्ट्रेस या फोर्स इसको कम किया तो डिफॉर्मेशन मीन्स हमारे ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो कम होगा। तो ये स्ट्रेस जो है दैट इज द डिजायर माइनस कैपेबिलिटी, वी विल अंडरस्टैंड इट इन वेरी मच डिटेल, इसको हम अच्छी तरह अभी समझेंगे। तो देखिए आपने ये जो है जितना ये कम होगा उतना डिफॉर्मेशन कम होगा। हम यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर इसका इफेक्ट नाइदर मेंटली नॉट फिजिकली कोई भी इफेक्ट नहीं आए, क्योंकि पहले तो मेंटली इफेक्ट आएगा, और मेंटली इफेक्ट इफ वी आर नॉट एबल टू हैंडल तो वो हमारा इफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिजिकल इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो स्ट्रेस लेवल कम हो, देखेंगे कैसे करते हैं, और दूसरा क्या है, अभी बताया स्ट्रेस दैट इज द डिजायर माइनस कैपेबिलिटी ऑब्लिक रिजिलियंस, हमने रिजिलियंस को बढ़ाना है, रिजिलियंस को बढ़ाएंगे तो डिफॉर्मेशन कम होगा, रिजिलियंस मतलब इनर स्ट्रेंथ। ये देखिए नाउ हमने ये 3 ग्राफ प्लॉट किए, ये सपोज करिए दिस इज फॉर दिस ग्राफ इज फॉर आयरन, अगर हमारा आयरन का पीस है, और ये ग्राफ सपोज करिए एल्युमिनियम का, और ये क्या है गोल्ड के लिए है। यहाँ देखिए सेम स्ट्रेस पे, फॉर द सेम स्ट्रेस सेम आपका प्रेशर फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन एल्युमिनियम में डिफॉर्मेशन ज्यादा है, आयरन में फिर कम है, गोल्ड में और कम है। तो हमें क्या करना है, अब ये डिफरेंट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डिफरेंट ह्यूमन बींग्स। ये हमारे एक ह्यूमन बींग का करेक्टरिस्टिक्स ये हो सकता है, दूसरे ह्यूमन बींग का करेक्टरिस्टिक्स ये हो सकता है, तीसरे ह्यूमन बींग का करेक्टरिस्टिक्स ये हो सकता है। ये क्या बता रहा है
कि भाई सेम स्ट्रेस है, सेम सिचुएशन है, अंडर सेम सिचुएशन हमारे ऊपर उनका इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या है, हमें एल्युमिनियम की तरह, आयरन की तरह नहीं, गोल्ड की तरह बनना है। गोल्ड की तरह मीन्स अगर स्ट्रेस ज्यादा है, सिचुएशंस हार्ड हैं, टफ हैं, तो अभी उसका इफेक्ट मिनिमम हो। आइडियली क्या होना चाहिए, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस इज देयर, अगर हमारे ऊपर इनफाइनाइट प्रेशर भी है तभी भी डिफॉर्मेशन नहीं हो, डिफॉर्मेशन नहीं, आइडियल सिचुएशन, आइडियल इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो हमारा बट लेकिन हम एटलीस्ट वी कैन ट्राई कि हमें एल्युमिनियम, आयरन और डिफरेंट मटेरियल की बजाय गोल्ड की तरह बनना है, ठीक है। तो ये हो गया इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ अगर अच्छा होगा तो उसका इफेक्ट कम होगा। तो नाउ वी विल मूव, या नाउ वी विल मूव हियर। देखिए, तो हमने इसको कम करने के लिए हम वी विल अंडरस्टैंड दिस, हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। डिजायर क्या होता है, कैपेबिलिटी क्या होता है, इनर स्ट्रेंथ क्या होता है, दैट वी विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेकिन ये तो क्लियर है, अगर हमने डिजायर को कम करें, इफ वी वांट टू रिड्यूस द स्ट्रेस, वी नीड टू रिड्यूस द डिजायर्स, वी हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, और और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, दैट इज द रेजिलियंस। तो हमारा ये जो है डिफॉर्मेशन मिनिमम होगा, हमारे ऊपर इफेक्ट मिनिमम होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिजायर क्या है। ओके, अब हम डिजायर और देखिए, डिजायर और संकल्प, एक तो होता है संकल्प शक्ति। संकल्प मतलब जो विचार मन में आते हैं, दो तरह के विचार आते हैं, एक तो होते हैं डिजायर और एक होते हैं संकल्प। तो व्यर्थ संकल्प मीन्स उसको भी कह सकते हैं व्यर्थ। उनमें डिफरेंस क्या है, देखिए, एक तो वो चीजें हैं जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे कि कल मैं एक स्टोरी बता रहा था आपको कि भाई एक एक व्यक्ति था, उसे एक दुकान पर नौकरी मिला, जिस दुकान में क्या था, वो अंडा की दुकान थी, और वो उस पर काम करता था। पहला फर्स्ट डे था, उसका लोडिंग करना था, उसे लोडिंग करना था, अंडे गाड़ी के कैरेट जो होता है उठा उठा कर गाड़ी पे लोडिंग करता जा रहा था। तो वो सोच रहा था कि भाई कि हमें शाम को जो ये मेहनत करूंगा, ये शाम को हमें इसका जो मेहनताना देगा, उसके रूप में जो अंडे देगा, उसको मैं खाऊंगा भी नहीं, बाजार में भी नहीं यूज करूंगा, उसको संभाल कर रखूंगा, उसको सेहूंगा, और उसके बाद उसको उसको रखूंगा। उससे फिर अंडे पैदा, वो चूजे पैदा होंगे। फिर वो क्या सोच रहा था, उससे चूजे पैदा होंगे, फिर मैं मेहनत करूंगा, और और हमें मेहनताना मिलेगा, अंडे मिलेंगे उससे, और चूजे पैदा होंगे। फिर क्या कि भाई चूजों से एक दो चूजे हो गए हमारे, फिर मैं तीसरे दिन क्या करूंगा, एक उन चूजों से क्या करूंगा, अंडे पैदा कराऊंगा, एक फार्म हाउस खोलूंगा। उस फार्म हाउस से क्या होगा, बहुत सारे अंडे पैदा होंगे, बहुत सारे अंडे होंगे, तो वो मैं बड़ा व्यापारी बनूंगा। बड़ा व्यापारी बनूंगा तो ये जो हमारा मालिक है, जो मुझे बहुत परेशान करता है और इतनी मेहनत कराता है, देता कुछ नहीं है, इसको अपने यहाँ नौकर रखूंगा। और फिर कह रहा, जब ये गलती करेगा तो मैं उसकी एक लात मारूंगा। और फिर वो क्या करता है, सपने में ही उसे एक लात मारता है, और उसके अंडे जो सिर पर होता है वो गिर जाते हैं। दुकानदार उसको निकाल देता है दुकान से, तो उसका जो सपना है वो टूट गया। तो ये क्या, ये हमने कहा, ये शेख चिल्ली टाइप के सपने हैं। शेख चिल्ली मीन्स जिसमें आपको कुछ नहीं, आप कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केवल आप मन ही मन क्या कर रहे हैं, मन ही मन आप प्लान करते चले जा रहे हैं, विचार करते चले जा रहे हैं, उस पर अपना इनपुट कुछ नहीं डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, ना कुछ उस पर आगे बढ़ रहे हैं, ना कोई कर्म कर रहे हैं, केवल सपने देख रहे हैं। तो ये जो शेख चिल्ली के सपने हैं, इनको डिजायर कहते हैं, इन्हें कहते हैं व्यर्थ संकल्प, यूजलेस संकल्प। कुछ इस तरह के हो गए, कुछ होते हैं यूजफुल संकल्प,
जिसमें हमें कुछ करना होता है। दूसरा क्या है, कुछ इस तरह की डिजायर हो गई, कुछ हो गई जिसमें हमें कुछ करना है। हमें कुछ करना है मतलब अब कुछ तरह की प्लानिंग ये हो गई कि बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, 10th का बच्चा है कि भाई हमें बोर्ड में हमारे 9th में 80% मार्क्स थे, अब मैं अपना टारगेट 90% रखूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उस सब्जेक्ट के लिए उसने बुक्स परचेज कर रहा है, उसके लिए ट्यूशन लगा रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि किस किस पीरियड में प्रैक्टिस करूंगा। अब वो होते हैं यूजफुल संकल्प। तो ये व्यर्थ संकल्प। इसी तरह कुछ हो गए एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर कि दूसरे लोग मेरे लिए ये करेंगे। फैमिली है, मेरे लिए कपड़े खरीदवा देगी, फैमिली है मुझे नकल से पास करा देगी, फैमिली है मेरे फादर हैं मेरी नौकरी लगवा देंगे। तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरे से। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिलेशंस कि भाई दूसरे लोग हमारी हेल्प करेंगे, मैं कुछ कहीं प्रॉब्लम में होऊंगा तो दूसरे लोग आएंगे मेरी हेल्प करेंगे। या एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सिस्टम कि सभी गाड़ियां ठीक से चलेंगी। और या कोरोना केस है, सभी डॉक्टर ठीक से काम करेंगे, या सभी चीज मेरे अकॉर्डिंगली चलेंगी। नेचर, आज बरसात होगी आज नहीं होगी। तो ये जो संकल्प हैं, या तो ये शेख चिल्ली वाले जो व्यर्थ संकल्प हैं, हवा में हवाले वाले संकल्प हैं, या एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। यू हैव नथिंग टू डू इट। इसमें आपको कुछ करना है, ये आप केवल ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज बरसात अच्छी होनी चाहिए, या मैं जाऊंगा तो मुझे भीड़ नहीं मिलना चाहिए, मैं टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अदर्स, जिसमें आपको कुछ नहीं मेहनत करना, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, उन संकल्पों को उन्हें कहते हैं डिजायर। उन डिजायर्स, ये आपके डिजायर डायरेक्टली दे आर फोर्नल टू द स्ट्रेस, ये आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। तो जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे रिलेशंस हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। जहां आपको कुछ नहीं करना, वो डायरेक्टली आपको स्ट्रेस पैदा करेंगे, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे संकल्पों को तो अगर आप छोड़ ही दें तो बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात यही है, ऐसे संकल्पों को छोड़ देना चाहिए। गॉड, अब देखिए सर, ये शेख चिल्ली कौन है? क्या मिस्टर अरुण? सर, हु इज शेख चिल्ली? हाँ, ये एक चुटकुला सुनाया था मैंने अभी आपको, एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। उसे कहते हैं शेख चिल्ली के सपने, जिसमें केवल वो सपने देखता है। उस व्यक्ति का नाम है शेख चिल्ली। ओके, तो ये अब वो सपने जहां आपको कुछ करना है, वो संकल्प जहां आपको कुछ करना है, तो उसे कहते हैं डिजायर फ्रॉम सेल्फ। अपने आप को, जैसे आपको क्लास में 90% मार्क्स लाना है, या आपको अपने बिजनेस को, अभी आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ का है, आपको अगली बार 1.5 करोड़ करना है, या आपको टाइम पे एम्बेसी में पहुंचना है, या टाइम पे आपको इंटरव्यू पे पहुंचना है जिससे आप अच्छा कर पाए। तो जो इस टाइप की चीजें हैं, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो या मिड टर्म हो, ये आपने सोचना है कि 10 साल के बाद आपकी ये पोजीशन होगी, उसके लिए विचार करना हो, या 1 साल के बाद आपका रिजल्ट ये हो, या 2 घंटे के बाद आपका इंटरव्यू ऐसा हो। तो इस चीजों को कहते हैं डिजायर फ्रॉम द सेल्फ। तो जो अपने से डिजायर फ्रॉम सेल्फ, उसको भी केवल डिजायर में कन्वर्ट ना, डिजायर तक ना रहने दें। अगर आप उसको मिशन एंड टारगेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर आप विजन बना लिए कि आपको 10 साल बाद ये करना है, फिर आपने अपना मिशन बना के, टारगेट बना के उस पर लग जाना है, उसको क्या कहते हैं डिजायर फ्रॉम द सेल्फ। उसे मिशन और टारगेट में कन्वर्ट कर लें। तो ये जो आपका है, जब आपने जो ये वाले डिजायर्स हैं जहां आपको कुछ नहीं करना, तो आपने व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ जो डिजायर हैं, यूजलेस डिजायर हैं, उन्हें आपने इसे कम कर दिया। ओके, सो दिस, और कैपेबिलिटी क्या है? अब आपने इस डिजायर्स को कन्वर्ट कर लिया इसमें, टारगेट्स में, विजन में, मिशन में। नाउ यू सी व्हाट आर योर कैपेबिलिटी। इस मिशन को बनाने के लिए कि आपके इतने % मार्क्स होना चाहिए, या आपका बिजनेस का टारगेट इतना होना चाहिए, या आपकी फैमिली की हेल्थ ये होनी चाहिए, या
आपने जो भी अपना डिजायर बनाया है या उसको आपने अब अपने मिशन में कन्वर्ट कर लिया है, अब आपको देखना है क्या जो हमारा ये टारगेट है, ये मिशन है, ये कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, हमारी क्षमता उतनी है कि नहीं है। सपोज करिए आपके 9th में 35% मार्क्स हैं और आपने कहा मैं 95% लाऊंगा 10th में, तो ये भी आपको देखना है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। या आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, आप कह रहे हैं हम IAS क्वालिफाई करेंगे, या आपका एक छोटा सा दुकान है, आप सोच रहे हैं हमारा 1000 करोड़ का बिजनेस डेवलप करना है, तो आपको देखना है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। ओके, कैपेबिलिटीज मीन्स क्या होती है, दीज आर द कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी मीन्स पोस्ट क्या है, आपकी पावर्स क्या है, आपके पोजीशंस क्या है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके ये सब चीजें। देखिए पोस्ट, अब देखिए ये कैपेबिलिटीज है। कैपेबिलिटी मीन्स क्या, देखिए एक व्यक्ति, ये पोस्ट आपकी अपनी भी हो सकती है, आपकी फैमिली मेंबर्स की, आपकी फादर की, आपके रिलेटिव की। सपोज करिए आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचान, सपोज करिए आपके फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके फादर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या आपके फादर एक लेबर हैं, या तो अकॉर्डिंगली नो डाउट देखिए समाज में सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन वो आपको अफेक्ट करता है। अफेक्ट करता है मतलब वो आपको हेल्प करेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि भाई इनकी आप चाहें या ना चाहें, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दिस विल बी काउंट एज ए कैपेबिलिटी। लेकिन सपोज करो आप एक बहुत ऑर्डिनरी फैमिली के मेंबर हैं और आपने डायरेक्टली सोचा है कि आप 1000 करोड़ का बिजनेस शुरू करेंगे, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, उतना फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो कैसे कर लेंगे आप। जो आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 150 का सोचेंगे, फिर 200 का सोचेंगे, फिर 1000 का सोचेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप मूव करेंगे। और जिसके पास पहले से ही जो टाटा के यहाँ पैदा हुआ है या जो रिलायंस के यहाँ पैदा हुआ है, जो 10 लाख करोड़ रुपए लेके पैदा हुआ, वो उसी तरह की सोच रख के वहां से आगे बढ़ेगा। तो ये कैपेबिलिटीज है आपकी कि आपका पोस्ट क्या है, पावर्स क्या है। दिस कैन बी फिजिकल पावर आल्सो, कि आप फिजिकल पावर, आप पतले दुबले हैं या स्ट्रांग हैं या फिजिकली आप वीक हैं। तो ये चीजें भी आपको आपके टारगेट जरूरी नहीं है, टारगेट आपके मेंटल टारगेट ही हो, फिजिकल टारगेट भी होते हैं। फिजिकल टारगेट्स मतलब आपने प्लान किया कि भाई आप किसी रेस में हिस्सा लेना है, आप टॉप करेंगे, फिजिकल टारगेट है आपका। या हॉस्टल में है आप, फिजिकल टारगेट्स है कि आपको एक्सरसाइज करना है, या फिजिकल टारगेट रिलेट विद द मेंटल टारगेट्स आल्सो। दोनों, जैसे हमने आपको पहले कभी बताया है, वोल्टेज स्टेबिलिटी और एंगल स्टेबिलिटी दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे फिजिकल एंड मेंटल दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग है तो मानसिक, और मानसिक स्ट्रांग है तो फिजिकल, वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ। पोजेशंस आपके पास क्या क्या चीजें हैं, मतलब सपोज करिए आपके पास कार है और आप जस्ट ए मिनट, यस, आपको एयरपोर्ट जाना है, आपका अपना व्हीकल है, तो आपको पहुंचने में टाइम कम लगेगा। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये दिस इज योर कैपेबिलिटीज। अच्छा, फिर इससे आपका मोरल में भी अफेक्ट करेगा। फिजिकल स्ट्रेंथ एज आई टोल्ड, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, एंड ओवरऑल इनके अलावा भी दीज आर योर, एज आई टोल्ड, दीज आर योर कैपेबिलिटीज। तो आपको जो विजन मिशन बनाना है, जो टारगेट्स बनाने हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज अगर है, मीन्स इससे मैच कर रहे हैं, इससे अगर मैच कर रहे हैं तो आपका ये जो है, आपके ऊपर जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो कम होगा। अगर सभी करिए आपकी कैपेबिलिटीज बहुत है और आपकी ये जो है, आपने जो मिशन बनाया है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प को तो छोड़ ही देना है, वो तो आपका स्ट्रेस का कारण है, वो तो आपने पहले ही सोच लिया
कि अगर आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, सबसे पहले तो आपको व्यर्थ संकल्प जो ये हैं इनको हटा देना है, इनको हटा देना है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। अब जो आपका विजन मिशन टारगेट रह गया वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली है। अगर इट कैन बी 0 तो आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है और आपकी संकल्प जो आपने प्लानिंग की है वो कम है, तो देयर विल बी नो स्ट्रेस। तो ये कैपेबिलिटीज आपका, एज आई टोल्ड, कैपेबिलिटीज आपका इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन पास्ट कर्मा। पास्ट कर्मा ये मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति पास्ट कर्मा के बारे में कौन बता सकता है? कोई थोड़ा सा बोलेगा? सर हाँ, पास्ट करने से सर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई जो सोशल वेलबींग है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपके का बैकग्राउंड कैसा रहा है या फिर आपके एक्टिविटीज़ या आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है। उस बेसिस पे समटाइम्स आपको आप मेहनत भी करते हो तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि आप जो सराउंडिंग है या देखिए जो नेचर है देखिए वो आप, सपोर्ट नहीं यस करता। यस, ठीक है। अगर आप चाहें या ना चाहें, जो आपकी सिचुएशंस है, आपके साथ जिंदगी में जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे भी डिपेंड करेगा आपके पास्ट कर्मा। पास्ट कर्मा मीन्स इफ यू आर 20 ईयर ओल्ड तो आप 0 से लेके 20 ईयर और बिफोर द 0 मीन्स इन द प्रीवियस लाइफ आपने जो किया था। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अरबपति के घर में पैदा होता है, कोई भी व्यक्ति भिखारी के घर में पैदा होता है, कोई भी व्यक्ति पूरा फिजिकली स्ट्रांग पैदा होता है, कभी कभी कोई बच्चा अपंग पैदा होता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रीवियस बर्थ के कर्मा क्या थे। और उसके बाद जब आप आगे आगे, जैसे आपने सपोज 0 से लेकर 20 ईयर तक जो आप कर्म कर रहे हैं वो भी डेस्टिनी के रूप में सामने आते हैं, एक सिचुएशन के रूप में सामने आते हैं। जैसे सपोज करिए आपने किसी से कुछ पैसे उधार ले लिए हैं 6 महीने पहले, तो आपको जितना आपका ड्यूरेशन होगा 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको वापस करना पड़ेगा। तो वो आपका जो भी आपका कर्मा है वो सिचुएशन आपको, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद में आपके पास वो परिस्थिति आएगी। उन परिस्थितियों को अगर जो परिस्थिति आ रही है वो टफ है, हार्ड एनफ है, तो एंड इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल देम, तो अगर हो सकता है ये आपके सिचुएशन को सॉफ्ट बना सकती हैं, आपकी जो सिचुएशन है उन्हें सॉफ्ट बना सकती हैं और हार्ड बना सकती हैं, लेकिन हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करके रखना है। तो ये कैपेबिलिटी होगी हमारी इनर कैपेबिलिटी एक तरह से। और तो एक तो ये हुआ कि भाई अगर हम इसको मेंटेन कर पाए प्रॉपर तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। दूसरा, अब क्या देखा हमने, इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ मीन जैसे अभी ऊपर देखा था फिगर में, ग्राफ में क्या देखा था कि अभी बताया था कि हमें एल्युमिनियम की तरह नहीं, गोल्ड की तरह बनना है, सोने की तरह बनना है। सोने की तरह, सोने का इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसमें इलोंगेशन कम होगा। तो इसी तरह हमारे ऊपर हमें, इसका मतलब इनर स्ट्रेंथ। अब इनर स्ट्रेंथ ह्यूमन बीइंग में कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इनर स्ट्रेंथ एक तो मेजर कैसे करते हैं? इनर स्ट्रेंथ मेजर का मतलब जो व्यक्ति कूल है, काम है, जो व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है उसका इनर स्ट्रेंथ कम है, कूल है, काम है। और इन प्लेस ऑफ रिएक्शन इफ ही रेस्पॉन्ड, ही और सी रेस्पॉन्ड, तो उसका इनर स्ट्रेंथ अच्छा है। मतलब क्या हुआ, रिएक्शन और रेस्पॉन्स में क्या फर्क है? दीक्षा, आर यू देयर इन द क्लास? यस सर। हाँ, रिएक्शन और रेस्पॉन्स में डिफरेंस बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स? सर सिमिलर ही लग रहा है सुनने में तो। नहीं, सिमिलर नहीं है। देखिए, रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है। जितने फोर्स से आप दीवार पे बॉल फेंकेंगे उतनी ही फोर्स से आपका बॉल वापस आएगा, उसे रिएक्शन कहते हैं। एंड दिस वर्क्स इन मटेरियल्स। ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है ये फिजिक्स का लॉ है और मटेरियल पे लागू होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में वी डोंट एक्सपेक्ट द रिएक्शन, हमें रेस्पॉन्स मीन्स अगर
रेस्पॉन्स का मतलब, इसका मतलब क्या है, अगर किसी ने जितनी तेजी से आपके ऊपर गुस्सा किया उतनी तेजी से आपने भी उसके ऊपर गुस्सा किया, तो आप क्या हुए, जैसे आपका अपना कॉन्शियसनेस कुछ नहीं है, आप दूसरे व्यक्ति के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। जो उसने गुस्सा किया आपने भी गुस्सा किया, इट इज ए रिएक्शन नॉट रेस्पॉन्स। तो आज ह्यूमन बीइंग क्या हो रहा है, मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। मटेरियल मीन्स हम, जैसा हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, ऐसे जल वायु पृथ्वी आकाश अग्नि, 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो 5 तत्वों से मिलकर जो बना है, मतलब क्या है, अग्नि जैसे बॉल है तो मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। और एक्चुअली में जो हमने अभी क्या डेफिनेशन बताया था, एक डेफिनेशन बताया था, आई द ड्राइवर ऑफ द बॉडी। मतलब क्या था, आई एम नॉट द बॉडी, मैं बॉडी नहीं, मैं क्या हूं, आई एम द ड्राइवर ऑफ द बॉडी, सिटिंग नियर द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, मींस आई एम द कॉन्शियस बीइंग। तो एक्चुअली में हम अपना कॉन्शियसनेस को भूल के और क्या कैसे बिहेव कर रहे हैं, मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो उसने गुस्सा किया तो मुझे भी गुस्सा करना है, वो रिएक्शन हो गया। लेकिन रेस्पॉन्स क्या हुआ, उसने गुस्सा किया तो हमें क्या करना चाहिए, ये सोच के जो जवाब आएगा। अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति है, सपोज करिए आपके ऊपर आपके पेरेंट्स ने गुस्सा किया, तो आपको क्या करना है, आपके ऊपर आपके वाइस चांसलर ने गुस्सा किया, आपको क्या करना है, आपके ऊपर आपके कोलीग ने गुस्सा किया तो आपको क्या करना है, आपके ऊपर 5 साल के बच्चे ने गुस्सा किया, आपको मार पीट के भाग गया, एक पीछे से पत्थर मार के भाग गया 5 साल का बच्चा, तो आपको क्या करना है। तो ये क्या हुआ, रेस्पॉन्स। इट इज नॉट ए रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब जैसे उसने किया वैसे ही आपने किया, वो रिएक्शन हो गया। पेरेंट्स ने गुस्सा किया, कुछ कहा, आपने भी कुछ बोल दिया। आपके टीचर ने कुछ कहा, आपने भी उल्टा जवाब दे दिया। आपको बच्चे ने 2 साल का बच्चा आपको मार के भाग गया, आपने भी उसके एक झापड़ मार दिया। तो उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन। ये रिएक्शन एक ह्यूमन बीइंग से उम्मीद नहीं की जाती, जिस पर कॉन्शियस बीइंग है, कॉन्शियसनेस है, मीन्स उससे उम्मीद की जाती है रेस्पॉन्स। तो अगर व्यक्ति कूल है, काम है और रिएक्शन की बजाय रेस्पॉन्स करता है, हैप्पी रहता है, पावरफुल है अंदर से और लवफुल है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसमें इनर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। दीज आर द मेजरिंग हाउ विल यू मेजर, हाउ विल यू नो कि उसकी इनर स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन क्वेश्चन इज है कि हमें मेजर नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, सो दैट इनर स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ाना है, कार्तिकेय, यस मिस्टर कार्तिकेय, मोहनलाल, मिस्टर मोहनलाल, सर। हाँ बताओ, इनर स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ाना चाहते हैं सर? इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद में मैन पावर माइंडली प्रिपेयर हो जाता है सर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। हाँ, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हमारे ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट, जो सिचुएशन है उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो उसके लिए दीज आर द सम टिप्स। इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये कुछ टिप्स हैं। इफ यू एक्सेप्ट ऑल एज दे आर, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हम देखिए एक्सेप्ट ऑल एज दे आर, जो जैसा है वैसा हम उसको स्वीकार करें। मतलब क्या, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ये ऐसा क्यों है, हम अपना बीपी बढ़ाते रहते हैं बिना बात पे कि भाई ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों है, ये पार्टी ऐसा क्यों है, उसने ये क्यों कहा, बजाय इसके कि हम अपने रोल को समझें। हम हर एक पे क्वेश्चन मार्क करते रहते हैं। ये बात अलग है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट एज दे आर, या कोई लीडर है वो पब्लिक की सेवा नहीं कर रहा है और किसी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एक्सेप्ट एज दे आर। मतलब ये है एक्सेप्ट दे आर, एक्सेप्ट ऑल एज दे आर, इसका मतलब है जो जैसा है, यस उसको ये स्वीकार करना, हाँ है ऐसा क्यों है, दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, या ये उम्मीद करना क्योंकि दुनिया तो जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही है। अब
उसमें क्या हम कुछ कर सकते हैं? एक्सेप्ट दयाल मतलब ये पता, ये स्वीकार कर लिया हाँ है, हमने अपना बिना बिना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, अपना बिना एंजाइटी बढ़ाए, हमने ये माना कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कि भाई हमारा भाई ऐसा क्यों है, फ्रेंड ऐसा क्यों है, या हमारी मदर ऐसा क्यों है, या ये दुनिया ऐसा क्यों है, भगवान ऐसा क्यों है। तो ये जो है ना, ये कंप्लेनिंग की बजाय इफ यू एक्सेप्ट ऑल एज दे आर, जो जैसा है, क्योंकि आप इसमें ना तो कुछ कर सकते हैं, उसको ये मानना हाँ वो वैसा ही होना था। अब इसमें अगर हमारा कुछ रोल है, अगर हमारा क्लोज है कोई, तो क्या हम उसको एडवाइस कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया इसका मतलब क्या है? यू आर रिजेक्टिंग हिम। अगर आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसे इंप्रूव भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप रिजेक्शन करेंगे तो रिजेक्शन की एनर्जी जाएगा, जैसे ही आप उसे रिजेक्ट करेंगे वो आपको रिजेक्ट करेगा। जैसे आप कहोगे तू गुस्सा क्यों करता है, किसी अपने फ्रेंड से कहा तू गुस्सा क्यों करता है, वो कहेगा, वो इमीडिएटली कह देगा तू भी तो गुस्सा करता है, या मैं जो हूँ गुस्सा करता हूँ सही करता हूँ, तूने बात ही ऐसी कही है कि मैं गुस्सा करूंगा। वो इमीडिएटली इट विल रिजेक्ट यू। तो आपको ये स्वीकार करना है, पहले आपका ब्रदर है, आपका फ्रेंड है, कि यस हाँ इसे गुस्सा आती है, लेकिन उस पर ब्लेम नहीं लगाना है। अब आप क्या कर सकते हो उसमें, या आपको गुस्सा आती है आप क्या कर सकते हो, ये देखना। पहले तो एक्सेप्ट ऑल एज दे आर, फिर आगे सोचना है क्या हम उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ये जब तक आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो ये हमारा स्ट्रेंथ को हम बार बार किसी पे क्वेश्चन मार्क करते जाएंगे, तो आप फील करिए आपकी एनर्जी लेवल कम होता चला जाएगा। आप सुबह से शाम तक आप करके देखिए कि आप सब पे आरोप लगाइए। जब भी आप किसी पर आरोप, एक एक आप क्वेश्चन, आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सराउंडिंग्स में जब जब किसी पर आरोप लगाएंगे, उसका वो जो होगा तो होगा उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, लेकिन आपका एनर्जी लेवल कम होता जाएगा। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आप अपने ब्रदर को, सिस्टर्स को, या फ्रेंड्स को, मदर को, किसी के ऊपर आप तो ऐसे ही करते हो, आप तो हमेशा खराब खाना बनाते हो, या आप तो हमेशा डांटते रहते हो, तो देखो उसका आपके अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और जो आगे का संवाद है वो कम हो जाएगा। तो देखिए, एक तो ये हो गया फर्स्ट कि आपका ये जब आप सबको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट ऑल दे आर, इट इज द वन फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग द इनर स्ट्रेंथ। प्ले योर रोल, आप अपना रोल अदा करो कि हमें क्या करना है। इफ यू आर ए ब्रदर, तो आप देखिए हमें क्या करना है। इफ यू आर ए सिस्टर, व्हाट माय रोल इज। इफ यू आर ए मदर, फादर, आपका क्या रोल है बच्चे के लिए। अगर आप टीचर हैं तो आपका क्या रोल है। जरूरी नहीं है कि आप टीचर हैं तो जबरदस्ती किसी को सिखा के मानेंगे। अगर सपोज करिए ये 20 का स्ट्रेंथ रह गया 34, अब मैं टेम्परामेंट लूज कर जाऊंगा कि भाई ये 32 से 20 क्यों रह गया, ये 14 बच्चे कहाँ भाग गए। अगर मैं टेम्परामेंट लूज कर जाऊंगा तो जो इसको भी मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, इन लोगों को भी डिलीवर करना चाह रहा हूँ, वो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो हमें ये नहीं देखना है कि भाई जबरदस्ती किसी को नहीं टीच करना है, हमें अपना रोल देखना। मेरा रोल क्या है, मेरा रोल क्या है, जो हमारे संपर्क संबंध में आए उन्हें गुड एनर्जी देना, अपनी बात को अच्छी तरह समझाना और उस लेवल तक ले जाना। तो प्ले माई रोल, प्ले योर रोल एज इट इज। आपको अपना रोल जो आपका है, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए टीचर, और एज ए एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉयर, आपका क्या रोल है वो आपको करना है। एम्प्लॉय का क्या रोल है वो आपको करना है। तो प्ले योर रोल, डोंट सी द अदर्स। उसके दूसरे के रोल में इंटरफियर करने के बजाय, टोकने के बजाय उसको सपोर्ट एंड सहयोग करना। सपोर्ट और सहयोग आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने रोल को ना भूलें। अगर आप सपोज करें अपने रोल को भूल गए, आपका रोल है मतलब क्या है, प्ले योर रोल। सपोज करिए जैसे आपको एक नाटक में एक सीरियल है, आपको उसमें एक रोल मिला, आपको एक सीरियल रोल मिला, कौन सा, हाँ हाँ दीपिका, कौन सा सीरियल देखते हो आप? सास भी कभी बहू थी सर। हैं? कुणाल से नहीं पूछ रहा हूँ, दीपिका। हाँ दीपिका, नॉट देयर। यस कुणाल, आप कौन सा सीरियल देखते हो? मैं नहीं देखता सर सीरियल। नहीं देखते?
नहीं सर, जेठालाल देखते हो सर, तारक मेहता का हाँ, उल्टा। जेठालाल। तो सपोज करो आपको जेठालाल का रोल मिला, ठीक है, यस सर। और सामने मेहता साहब हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, अब आपको रोल मिला जेठालाल का, और मेहता मेहता जो है तारक मेहता, वो अपना, उसका नाम मेहता का क्या पूरा? तारक मेहता सर। तारक मेहता। तारक मेहता अपना डायलॉग भूल गए। आप अपना डायलॉग बोल रहे हैं कि आप हमारी फायर ब्रिगेड हैं और अपना बोल रहे हैं, और तारक मेहता अपना डायलॉग भूल गए, तो आप क्या करोगे? सर कवर करने की कोशिश करूंगा अगर हो सकेगा। आप अपने रोल को अच्छी तरह प्ले करते, ऐसा तो नहीं है आप गुस्से में आकर, अरे मेहता तू अपना डायलॉग भूल गया, तुझे ये डायलॉग बोलना था, नहीं ये क्यों सर, नहीं बोला, मैं ऐसा बबीता जी कहोगे पे ट्रांसफर कर या? दूंगा। हैं? मैं सर कवर करने के लिए बबीता जी हाँ, पे कुछ डायलॉग मार आप दूंगा। अपना डायलॉग बोलते रहेंगे, जिससे उसे और ऐसा सहयोग करेंगे कि उसे अपना डायलॉग याद आ जाए। ऐसे ही तो करेंगे। यस सर। लेकिन यहाँ क्या करते हैं आप प्ले और रोल में, कि आप दूसरे की कमी निकाल देते हैं। क्या किसी ने कुछ बोला, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो तो ही और सी इज प्लेइंग हिज और हर रोल, वो अपना रोल अपनी तरह से कर रहा है। आपको क्या करना है? आपको अपना रोल प्ले करना है, दूसरे में कमी निकालने के बिना। कि अगर आप एज ए टीचर खड़े हुए हैं तो आप वो अपना रोल करते रहे, फ्रेंड खड़े हुए हैं तो एज ए फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या? सहयोग करना, सपोर्ट करना। गुस्से को गुस्से से जवाब नहीं देना, या वो डायलॉग भूल गया तो डायलॉग मतलब अपना बिहेवियर उसका, उसने आपको धक्का मार दिया तो आप भी धक्का मारने लग जाओ, या उसने कुछ क्वेश्चन मार्क कर दिया, तू तो बेवकूफ है, या तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो आप भी कहने लग जाओ। आपको इफ यू आर ए फ्रेंड तो आपको फ्रेंड वाला ही डायलॉग बोलना है। वो है प्ले और रोल, जिससे वो भी धीमे धीमे समझ आ जाए कि भाई मैं भूल गया था, मैं फ्रेंड था और मैं बिहेव एनिमी की तरह कर रहा था। तो वो आप सहयोग करेंगे तो उसे कहते हैं प्ले और रोल। तो रियल लाइफ में भी आपको वही करना है। जब आप ये करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा? आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा। एनर्जी लेवल ही आपकी इनर स्ट्रेंथ है, रिजिलियंस है। प्ले योर रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द रोल ऑफ अदर्स। नॉर्मली हम यही करते हैं, हम दूसरे में कमियां ढूंढते रहते हैं और अपनी एनर्जी लेवल को डाउन करते रहते हैं। तो दूसरों को अपना रोल प्ले करने दें, मतलब कूलली कामली लें जो जैसा कर रहा है, और अपने को आप प्ले करें। टेक इट इजी, दुनिया को इजी लें, गुस्सा ना करें कि दुनिया जो चल रही है कि ठीक है, आज के समय में भी जो परिस्थिति है उसको भी इजी लें कि कोरोना काल चल रहा है, ब्लैक फंगस चल रहा है, व्हाइट फंगस चल रहा है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, उसको भी आप अपने सिर पर हावी ना होने दें। ये सब क्यों है? उसको ये लेना है भाई, ये महामारी है, समय का चक्र है, सभी परिस्थितियां आती हैं, अच्छी परिस्थितियां भी आई हैं समय पे, खराब परिस्थितियां भी आती हैं। हमें झेलने के लिए हमें उसको फेस करने के लिए हमें मौका मिला है, हम अच्छी तरह फेस, पहले तो इजी लेंगे फिर आप उसे अच्छी तरह फेस कर पाएंगे। तो टेक इट इजी, हर चीज को इजी लेना है। इजी अगर नहीं लेंगे फिर आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। इसका देखिए, यूज कॉपी पेस्ट बिहेवियर, इसको आप अभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए इसको मैं, जैसे आपने देखा होगा, सपोज करिए आप, हाँ, साहिल जगलान, आर यू देयर? साहिल जगलान हैं? प्रेजेंट है? नहीं, ये सुमित, आर यू प्रेजेंट? यस सर। हाँ, अच्छा सुमित ये बताइए, सपोज करिए आप लिफ्ट में जा रहे हैं, यस ओके, सर। और एक दूसरा व्यक्ति भी, आप 5th फ्लोर पे हैं और ऊपर जा रहे हैं, 7th फ्लोर पे एक दूसरा व्यक्ति चढ़ा, आपको फर्स्ट टाइम मिला है और आपको देख के मुस्कुराया, आप क्या करेंगे? सर हेलो बोलेंगे। और उसने मुस्कुराया तो आप भी मुस्कुराएंगे। यस सर। हाँ, और 8th फ्लोर पे एक व्यक्ति मिला जो आपको घूर रहा है, यस सर। आपको देख के घूर रहा है और ऐसा लग रहा है, लाल आंखें हैं कि वो आपको बाहर निकलते ही किसी बात से नाराज है, आप क्या करोगे? सर या तो उसे पूछें क्या हुआ, या इग्नोर कर देंगे। या इग्नोर करेंगे, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सोचेंगे। सर हाँ, तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, हम दूसरे के प्रभाव में आ जा रहे हैं।
अगर देखिए क्या हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, स्माइल दे रहा था, तो आप मुस्कुरा रहे थे। अगर कोई व्यक्ति घूर रहा था तो आप भी गुस्से में आ रहे थे, डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस। अगर आप उसे फेस करने के लायक हैं तो आप भी घूरेंगे, अगर फेस करने के लायक नहीं है तो आप इग्नोर कर देंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरे के प्रभाव में आते चले जा रहे हैं, यस सर। आते चले जा रहे हैं। लेकिन तो आपने क्या देखा, हम दूसरे के प्रभाव में आने की बजाय हम क्या अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं? मतलब जिस तरह क्या हम सबको देख के, जैसे आपने दूसरे को देख के मुस्कुराया, आपने दूसरा मुस्कुराया तो आप भी मुस्कुराए, तो क्या जो व्यक्ति गुस्सा में, आपने देखा कि अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी के ऊपर ये पॉजिटिव बिहेवियर, आप दूसरे से गुस्से की बजाय गुस्से की पॉजिटिव आप अपना नेचर रखें। नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप अपनी तरफ से मुस्कुराएं। आप कोई गुस्से में हैं, आप देखिए अगर कोई व्यक्ति गुस्से में भी होगा, अगर आप उसे देख के मुस्कुराएंगे, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, थोड़े समय के लिए आपका, अगर आपकी सपोज करिए किसी कुलीग से कुछ समय पहले नाराजगी हो गई थी, अब आप अचानक उसकी तरफ देख के मुस्कुराइए, आप देखेंगे भले ही वो आपको अंदर से दिल ना मिले, धीमे धीमे वो आपको देख के एक बार तो मुस्कुराएगा। तो अपने इस बिहेवियर को यूज करिए, कॉपी पेस्ट बिहेवियर। जब आप बार बार इस बिहेवियर को यूज करेंगे तो आपका ये संस्कार अच्छा होता जाएगा और आपके रिलेशन अच्छे होंगे। दिस इज कॉल्ड द कॉपी पेस्ट। मतलब नॉर्मल बीइंग, हमें दूसरे का फॉलोअर नहीं बनना है, बल्कि इसको यूज करना है, हमें इसको यूज करना है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाने हैं। जिससे क्या होगा, हमारा पर्सनैलिटी इंप्रूव होगा, हमारे रिलेशंस इंप्रूव होंगे, हमारा इनर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। मूव लाइटली। बहुत बार होता है हम बहुत ज्यादा बोझ लेकर सिर पे चलते हैं, बहुत सारा बोझ, मतलब ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत सारा सिर पे बोझ लेते हैं। सारी दुनिया का बोझ हम अपने सिर पे उठा के घूमते रहते हैं। बहुत लाइटली लेना है कि नहीं, ये सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सारी हमें अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान रखना है। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मैंने नहीं दे रखी है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी, कि भगवान की जिम्मेदारी, कि नेचर की जिम्मेदारी, या आपके एमएलए एमपी की, या आपके गांव के प्रधान की, काउंसलर की, सारी जिम्मेदारी ये अपना काम क्यों नहीं कर रहा, अपने सिर पे नहीं उठाना है, लाइटली मूव करना है अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए। इससे हमारी विल पावर बढ़ती चली जाती है। फिर होता क्या है, इनर स्ट्रेंथ देखिए, हमारा आईक्यू लेवल भी इनर स्ट्रेंथ है। आईक्यू मीन्स जजिंग टू, किसी को हमें इमीडिएटली जज करना है, आईक्यू लेवल पे डिपेंड करे। आईक्यू क्या है, इंटेलिजेंट कोसेंट, ईक्यू इमोशनल कोसेंट, देन एसक्यू स्पिरिचुअल कोसेंट। तो ये हमारी इनर स्ट्रेंथ है। अब इनको बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ी बात है, तो वी कैन डिस्कस दिस इन शॉर्ट, थोड़ा थोड़ा अगर अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखिए तो ये है 8, गॉड ने हमें, गॉड हैज गिवन अस दीज पावर्स, हमें ये पावर्स दी हैं जो हमारी पावर बहुत कमजोर हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है, या तो हम भूल गए हैं या उनको यूज नहीं किया है, इसलिए वो हम वीक होते गए हैं। जैसे आप देखिए, अगर आप किचन में खड़े हुए हैं, अगर आप किचन में आप देखिए, किचन में वो होता है ना, हाँ दीपिका आप आ गए या नहीं अभी तक? बहुत से लोग ऐसे ही म्यूट करके बैठे हुए हैं क्या? हाँ दीक्षा, आर यू देयर? यस सर। हाँ, कौन है? तनु इज देयर और नॉट? तनु है? यस सर। हाँ अच्छा, आप देखिए किचन में वो होता है ना स्पाइसेस, जो हमारे मसाले रखे होते हैं, एक उसमें, उसे क्या कहते हैं, कंटेनर जिसमें सारे मसाले रखे होते हैं। बहुत बार या किचन में बहुत सारी डिब्बियां हैं, जब हम खाना बनाते हैं बहुत सारी डिब्बियां रखी होती हैं, उसमें नमक हो गया, हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मसाले हो गई। तो बहुत बार क्या करते हैं, जो मसाला बार बार यूज करते हैं वो आगे आ जाता है, आगे होता है, और जो हम बहुत कम यूज होता है या नहीं यूज होता है वो पीछे हो जाता है, बहुत बार हमें ढूंढने से मिलता भी नहीं है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? वो याद रहेगा। तो जिस चीज को हम बार बार यूज करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है, और जिसको हम यूज नहीं करते हैं वो धीमे धीमे लुप्त होता जाता है, बहुत पीछे चला जाता है। तो भगवान ने हमें ये सारी पावर्स दी थी, लेकिन हमने उनको यूज नहीं किया।
यूज नहीं किया तो वो हमारी कम होती चली गई, कम हो गई, मतलब इनर स्ट्रेंथ कम होती गई। व्हाट आर दीज पावर्स? पावर्स मतलब पावर टू विड्रॉ मतलब क्या है? जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं, सपोज करिए, पावर टू विड्रॉ का मतलब आप देखो, ये समझिए, जैसे सपोज करिए आप कहीं जा रहे हो और एक्सीडेंट हो गया, आप भी कार में हैं और दूसरा व्यक्ति भी कार में है, आपस में थोड़ा सा कार आपके उसके लग गई, या एक एक्सीडेंट में सपोज वो मोटरसाइकिल पे एक कार में और एक्सीडेंट हो गया, तो अब उसमें क्या हो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? अरुण, आर यू देयर? यस सर। हाँ बताओ, अगर दो लोग हैं और रोड Yes, पे sir. अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो दो ग्रुप हैं, उनमें नॉर्मली क्या होता है, व्हाट हैपेंस? सर एक्चुअली पहले तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि सिचुएशन क्या है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है तो मोस्टली उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ज़्यादा हो जाता है तो लड़ाई झगड़े आपका भी हो माइक जाते हैं। थोड़ा स्लो है। सर अब क्लियर है सर? हाँ सर मैं कह रहा था कि अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो झगड़े भी हो जाते हैं और लड़ाई भी हो जाती है। हाँ अदरवाइज कभी कभी नॉर्मली क्या है, सबसे पहले तो उतरते ही वो एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, तेरी गलती है, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं और एक दूसरे को ब्लेम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लड़ाई होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद और प्रॉब्लम हमारी सीरियस हो जाती है। बजाय उसके हमें एक दूसरे पे ब्लेम या लड़ाई करने के बजाय भाई क्या नुकसान हुआ उस पर जाना चाहिए, या उसको हाउ टू ओवरकम दैट सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अगर किसी की चोट लग गई है तो पहले प्रायोरिटी क्या है उसको ध्यान में रखना है, उसकी बजाय हम अच्छा नॉर्मली जैसे सपोज करिए आप ही जा रहे हैं और करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? देखिए जब दो लोग आपस में, दो ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं तो बाहर एक तीसरा व्यक्ति खड़ा है, वो क्या सोचता है, वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि देखो अभी जरूरत है किस चीज की और ये लड़ने में लगे हैं, सिर फोड़ने में लगे हैं, या इससे लड़ने से फायदा क्या है। तीसरा व्यक्ति से सोचेगा लड़ाई से कोई हल निकलेगा, समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो तीसरा व्यक्ति, सिंस द थर्ड पर्सन इज नॉट इन द सिचुएशन, वो व्यक्ति सिचुएशन में नहीं है, इसलिए वो ठीक से सोच पा रहा है, और जो व्यक्ति सिचुएशन में है वो ठीक से नहीं सोच पा रहा है, वो एक दूसरे के ब्लेमिंग में लग जाएगा। तो पावर टू विड्रॉ का मतलब यही है कि अगर हमने जैसे कोई घटना हुई, हम उस घटना से, उस परिस्थिति से अपने आप को अलग देखें कि आई एम नॉट इन द सिचुएशन, मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ। सिचुएशन नहीं चली जाएगी, सिचुएशन इज देयर, घटना तो वो है ही, वो नहीं चली जाएगी। लेकिन अगर हम उससे अपने आप को विड्रॉ करके देखेंगे अलग, ये सोचें एक सेकंड के लिए, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, एक सेकंड लगेगा, दैट आई एम नॉट देयर, एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ नहीं हुआ है, कोई थर्ड पर्सन है। तो जब थर्ड पर्सन है तो उस समय जो आपका विचार होगा वो एकदम परफेक्ट होगा, वो सही सोच रहा होगा। तो जब आप उस समय सही सोच रहे होंगे तो दैट इज कॉल्ड द, जब आप सही सोच पाएंगे तो सही निर्णय भी ले पाएंगे, उसे कहते हैं पावर टू विड्रॉ। आप सिचुएशन से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, फिर आप सही मीन्स आपको पता लग जाएगा यू आर इन ए पोजिशन टू डिस्क्रिमिनेट द सिचुएशन। आप इस पोजीशन में होंगे सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप सिचुएशन का पार्ट होंगे तो आप सही और गलत नहीं सोच पाएंगे। तो ये भी है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, सही और गलत की पहचान करना, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में सही और गलत की पहचान करना, ये हमारी इनर स्ट्रेंथ है। कुछ लोग हम सही गलत पहचान ही नहीं कर पाते हैं, हमारी गलती होगी तो अभी मानने को तैयार नहीं होते हैं, बहुत बार हम खुद जानते भी नहीं है सही क्या है गलत क्या है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि हमें लेट गो करना है चीज़ों को या फेस करना है। परिस्थिति को लेट गो करना है, जाने दो, या उसको फेस करना है। फेस करने का मतलब जरूरी नहीं है मारपीट करना है, लड़ना है, या फेस करने का मतलब है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिसको चोट, उसको अगर एक्सीडेंट हुआ है, कुछ नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करना है, हॉस्पिटल ले जाना है, या हमें फोर्सफुली भी उसको बताना है कि नहीं आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। तो ये सब हमें लेट गो करना है कि फेस करना है, या टॉलरेट करना है, या एक्सेप्ट। बहुत बार क्या होता है जहाँ हमें फेस करना होता है वहाँ हम टॉलरेट करने लग जाते हैं,
देखा दूसरे की ताकत है तो टॉलरेट करने लग गए, जहाँ टॉलरेट करना होता है वहाँ फेस करने लग जाते हैं, उसकी वजह से स्थिति खराब होती जाती है। और बहुत बार पावर टू डिस्क्रिमिनेट मतलब डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफरेंस कर पाए सही क्या है गलत क्या है, फिर हमें करना क्या है एक्चुअली में डिसाइड करते हैं। पावर टू डिसाइड मतलब लेट को करना है कि फेस करना है, टॉलरेट करना है या और सिचुएशन को वाइंड अप करना है। तो ये सारी हमारी शक्तियां हैं जो हमें डिफरेंट पावर्स में अप्लाई करना पड़ता है, डिफरेंट पावर्स में हमारे काम आती हैं। और आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, हम कितनी जल्दी चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, सही हो गलत, एनालिसिस, मैथमेटिक, मेंटल एबिलिटी, तो हमें एक्चुअली में तो दिस इज द आईक्यू। आईक्यू बहुत बार आईक्यू अच्छा होते हुए भी आप देखेंगे आईआईटीएन है लेकिन जिंदगी में सफल नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस मिलेंगे आपको आईक्यू अच्छा है लेकिन वो सफल नहीं है। रीजन क्या है, उसके पास ईक्यू नहीं है। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन, बहुत इंटेलिजेंट तो है लेकिन घबरा जाता है बहुत जल्दी घबरा जाता, सही पता लग जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली डिसीजन नहीं ले पाएगा, इमोशनली डरता रहेगा, फियर होगा, तो ये डरता रहेगा तो डिसीजन नहीं लेगा। अगर डिसीजन ले भी लिया और बाय द वे डिसीजन गलत हो गया तो फिर धैर्य के साथ उसको स्वीकार करना, स्पिरिचुअल क्वेश्चन अच्छा नहीं है, तो अभी सफलता पे क्वेश्चन मार्क रहता है उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमें इन पे भी काम करना होता है। हाउ टू इम्प्रूव अवर पावर्स, हाउ टू इम्प्रूव अवर आईक्यू, हाउ टू इम्प्रूव अवर ईक्यू एंड एसक्यू, ये सब हमारी इनर स्ट्रेंथ है। इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो आपने जैसा कि फॉर्मूला में देखा क्या होगा, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा डिफॉर्मेशन कम होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, उसका इफेक्ट जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट मिनिमाइज होगा। एंड टू मिनिमाइज दैट मीन्स हमें स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अभी हमने क्या देखा कि हमें ये अपना इनर स्ट्रेंथ क्या, प्ले अवर एक्सेप्ट ऑल एज दे आर, प्ले अवर रोल, बातों को ईजी लें, गुस्सा ना करें, अपनी पावर्स को बढ़ा कर रखें, कॉपी पेस्ट बिहेवियर को यूज करें, मुस्कुराते रहें, रिलेशनशिप विद द सेल्फ, अपने साथ रिलेशंस को अच्छा करें। अपने साथ रिलेशंस का मतलब ये तो होता है दूसरे के साथ रिलेशन, अपने साथ रिलेशन का मतलब बीच बीच में आप अपने आप से भी पूछें कि भाई आर यू ओके, क्या आप सही हैं कि नहीं है, मतलब आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है, आप परेशान तो नहीं है, आप चीज़ों को और जैसे दूसरे को समझाते हैं। जैसे सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड किसी बात को लेके बहुत नाराज है, बहुत परेशान है कि भाई उसे वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो वो चाहता है, तो आप क्या करोगे? यस मयंक, आर यू देयर और नॉट? मयंक, हाँ, सपोज करो आपका कोई फ्रेंड किसी बात को लेके बहुत परेशान है, फैमिली को लेके परेशान है कि भाई उसकी फैमिली उसे कोऑपरेट नहीं कर रही है, उसे ऐसा लग रहा है, या फाइनेंस की प्रॉब्लम है, या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत किसी बात को लेके बहुत प्रॉब्लम में है, तो आप क्या करेंगे? सर बेसिकली मैं फैक्ट चेक करूंगा कि सर वो जो भी उसकी बात है वो सही है या फिर गलत है, अकॉर्डिंगली उसको फिर समझाऊंगा सर। हाँ समझाएंगे। समझाने में क्या कहोगे? सपोज वो कह रहा है मेरे पास शॉर्टेज है, पैसे की शॉर्टेज है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कहोगे? सर अगर वो मैं कैपेबल हूँ सर उसको देने के लिए और उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो सर मैं हेल्प कर सकता हूँ। नहीं, हेल्प तो पॉसिबल, सपोज करिए आप हेल्प करने की पोजीशन में नहीं है, उसे 1 लाख रुपए चाहिए, आपके पास नहीं है, जैसे डॉक्टर है तो उसको गाइड कर सकता हूँ सर, गाइड कर सकता हूँ सर कैसे मिले सर पैसे उसे, जैसे सपोज करिए आप एक डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, अब आपके पास 100 पेशेंट आते हैं, अब सभी आके कहते हैं क्या मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई कह रहा मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो परेशान है, कोई कह रहा हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, कोई कह रहा हमारा फ्रेंड चला गया है, कोई कह रहा हमारी डिफरेंट बिजनेस में घाटा हो गया, वो लेकर आता है, तो आप क्या करेंगे एज ए साइकोलॉजिस्ट? सबके लिए हेल्प करना फाइनेंशियली शुरू कर देंगे? नहीं सर, उनको फिर सर मतलब बताएंगे सर कि खुश रहे हैं, मतलब इस टाइप से सर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं है, समय का इंतजार करिए, सब सही हो जाएगा, अपने आप में धैर्य बना कर रखो, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी,
परेशान होने से कुछ मिलने वाला नहीं है, यही तो कहोगे। यस सर, यस सर। परेशान होने से अगर समस्या सॉल्व हो जाए तो आप परेशान हो जाओ, पर समस्या सॉल्व होगी जब आप धैर्य रखेंगे, समस्या सॉल्व होगी जब आप चीज़ों को अच्छी तरह समझेंगे, यही तो आप समझाएंगे। तो इसी तरह इसे कहते हैं, हाँ इसे कहते हैं लेकिन सर फाइनेंशियल रिलेशनशिप। प्रॉब्लम है तो सर समझने से कैसे सॉल्व होगी? हाँ, तो उसे समझाने से ये है कि भाई आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को समझें। सपोज करिए आपके फ्रेंड के पास 5,000 है, वो प्लानिंग कर रहा है 1 लाख की, तो आप ये कहोगे भाई अपनी कैपेबिलिटीज को ध्यान दें कि दुनिया में हर व्यक्ति लाखों और करोड़ों का हर व्यक्ति रिलायंस नहीं बन सकता, दुनिया में सभी को बराबर बराबर रहने का अधिकार है। नहीं सर, अगर उसको पैसों की जरूरत है, अगर उसको पैसों की जरूरत है तो उसमें ये थोड़ी ना कि उसको 5,000 की जरूरत है सर। मान लो अगर किसी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो हाँ वो 1 लाख की जब बजाय वो 5,000 में थोड़ी काम चलाएगा। किसी को हाँ ट्रीटमेंट हाँ हाँ, उसके करवाना है 5,000 है और उसे 1 लाख का 1 लाख की वो प्लानिंग कर रहा है, तो 2 चीजें नहीं सर, देखना नहीं पड़ेगा। सर, नहीं सर, जरूरत जैसे अलग चीज किसी होती को, है और प्लानिंग अलग चीज देखिए। हाँ सर प्लानिंग, ये सही कहा सर आपने। हाँ, प्लानिंग कर रहा है कि मेरे पास 1 लाख होगा तो मैं ये करूंगा, अब आप उसे समझाएंगे कि भाई 1 लाख क्यों है, अपनी स्थिति को देख के आप प्लानिंग करो। और जहाँ तक जरूरत है, अब जरूरत है मान लो कोई बीमार पड़ गया, तो उस केस में भी देखिए गवर्नमेंट भी चाहे, भगवान भी चाहे, तो हर एक व्यक्ति को लाख लाख रुपए नहीं दे सकती है। आपका एक फ्रेंड है, आप किसी तरह हेल्प कर भी दो, लेकिन कब तक हेल्प करोगे? अल्टीमेटली तो आप क्या करोगे, मतलब ये कहेंगे आपकी जो क्षमता, हर व्यक्ति जो आपकी क्षमता है उस क्षमता के अंदर काम करने की कोशिश करें और डिफरेंट रास्ते निकालें। अब जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि भाई कोई बीमार पड़ गया तो उन स्कीम का फायदा उठाएं, उसे स्कीम का फायदा उठाने के लिए हमें किस किस के पास जाना है उसमें आप हेल्प करेंगे। आपकी हर व्यक्ति की अपनी लिमिटेशन है, वो व्यक्ति हर एक की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्स ही यूज कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप हमारा केवल मानसिक रिसोर्सेस ही करने से, उसको सलाह मशवरा करने से 80% उसकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। अगर आपका बहुत पर्सनल आप करना चाहते हैं तो ठीक है करिए, लेकिन आप हर व्यक्ति को फाइनेंशियली, या हर व्यक्ति को मान लो कोई व्यक्ति के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, अब आप उसे कहेंगे कि भाई उसे आपकी फिजिकल हेल्प की जरूरत है, आप कहोगे नहीं मैं आ जाता हूँ, आगे खड़ा हूँ, तुझे अरेस्ट नहीं होने दूंगा, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको केवल उसे समझाना पड़ेगा कि इस परिस्थितियों को ऐसे ऐसे हैंडल करना है, कानून से भागना नहीं है, या जो बीमारी आ गई है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे। और अल्टीमेटली अगर आप पॉजिटिव माइंड से रहोगे तो बीमारी 50% दूर हो जाएगी। आप उसे कहोगे कि अगर आप घबराओगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, अगर आप उससे पॉजिटिवली फेस करेंगे तो बीमारी आपकी कम हो जाएगी। आप भगवान से कनेक्टेड होगे, ये मान के चलोगे कि हाँ ये बीमारी बहुत छोटी है, मैं बहुत बड़ा हूँ, तो बीमारी छोटी हो जाएगी। आपको लगेगा बीमारी बहुत बड़ी है, अब मैं नहीं बचूंगा, तो बीमारी अपना रोल दिखाना शुरू कर देगी। तो इस तरह चीज़ों को समझाना पड़ता है, जिस तरह दूसरों को समझाना पड़ता है उसी तरह अपने आप को भी समझाना पड़ता है। उसे कहते हैं रिलेशनशिप विद द सेल्फ। अपने आप को जब आप समझाएंगे तो अपने साथ भी, मीन्स क्या आर यू ओके, आप परेशान तो नहीं हैं, आप खुश तो हैं। इस तरह अपने आप को समझाने से आपको आपका जो है इनर स्ट्रेंथ इंप्रूव करता जाता है। अच्छा, दूसरा क्या है, देखिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो थॉट्स हैं, नॉर्मली 20-25 थॉट्स पर मिनट वो थॉट क्रिएट करता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर यूजलेस, बहुत सारे थॉट्स बेकार होते हैं। और जिस तरह अगर आपका थॉट का लेवल बढ़ता जाएगा तो आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट गिरती जाती है। अगर आपका थॉट की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, मीन्स आप 20-25 की जगह 15 थॉट क्रिएट कर रहे हैं, 10 वही थॉट क्रिएट कर रहे हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मीन्स वो कौन से होंगे, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, एलिवेटेड थॉट्स होंगे। जो व्यर्थ थॉट होंगे, जो नेगेटिव थॉट्स होंगे, उनकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। और वो बहुत बार क्या होता है, इतनी जल्दी थॉट्स चलते हैं, वो आपके थॉट्स जो मन में चले वो आपके ना मुख पे आ पाते हैं ना कर्मों में आ पाते हैं, ना मुख पे आएंगे ना कर्मों पे आएंगे, वो आएंगे ही नहीं, थॉट्स गायब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा मैं क्या सोच रहा था। बहुत बार ये होगा, आप 1 घंटे बैठे हैं और कुछ सोच रहे हैं, आपका सिर भारी भारी हो गया,
और आपको पता ही नहीं लगा आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन और जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, एलिवेटेड थॉट होते हैं, वो पूरे मिनट में 2-4 थॉट्स आएंगे, आप वही करेंगे, उठेंगे और वो काम करेंगे। जब थॉट्स का लेवल मीन्स स्पीड कम होगी, व्हेन द स्पीड ऑफ द थॉट्स इज लो, द थॉट्स विल बी पॉजिटिव एंड गुड, एलिवेटेड। एंड इफ द स्पीड इज हाई, निगेटिव होंगे और आपको परेशान करने वाले होंगे। ये आप देखेंगे अगर थॉट्स की स्पीड 50-60 होती है तो आप समझो आप एंजाइटी से, प्रॉब्लम से क्रिएट हो रहे हैं, और आपको एक लिमिट के बाद आपको कह दिया जाता है अगर थॉट्स का लेवल इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 60-70 थॉट्स पर मिनट अगर आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मेंटली घोषित किया जाता है। और अगर आप जाएंगे ऐसे मानसिक रोगियों के पास जाएंगे, उनकी थॉट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें अपने थॉट्स की स्पीड को कम रखना है। थॉट्स की स्पीड को कम रखेंगे मतलब पॉजिटिव थॉट्स होंगे, अच्छे थॉट्स होंगे, व्यर्थ थॉट नहीं होंगे। व्यर्थ थॉट्स ही सिर को भारी करते हैं, हमारी पावर को कम करते हैं। पावर को कम करते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, केवल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल, अगर इफ वी डिक्रीज द थॉट्स स्पीड, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। ये जैसे ही हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब थॉट्स की स्पीड बढ़ती जाएगी, और एक टाइम के बाद अगर हम उसको मैच नहीं कर पाए, तो हमारा वही स्टेज, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, काउंसलर के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, और फिर अल्टीमेटली आपको पागल खाने में एडमिट होने की जैसी स्थिति भी आ जाती है अगर आपने इस पर कंट्रोल नहीं किया। तो थॉट्स स्पीड इज वेरी मच नीड। इसको कंट्रोल में रखना, अपने आप को कंट्रोल में, अपने मन को काबू में रखना। जैसे तभी तो कहा था ऑल द डिसीजेज आर साइकोसोमेटिक, मतलब मन से ही स्टार्ट होती हैं। सारे जो बीमारियां हैं वो मन से ही स्टार्ट होती हैं। तो हमें अपनी मन की स्पीड पे कंट्रोल रखना है, अच्छे थॉट्स ही रहना है। और जब आपको पता है जब सो रहे होते हैं थॉट्स की स्पीड बहुत कम हो जाती है। सोते वक्त थॉट्स की स्पीड बहुत कम हो जाती है, मतलब जब हम साउंड स्लीप में होते हैं तो ओनली 4-5 थॉट्स, बहुत कम थॉट्स हमारे, अगर हमारी स्लीप अच्छी है। अगर अच्छी नहीं है तो सोते में भी हमारे थॉट्स चल रहे हैं तो कहते हैं हमें नींद अच्छी नहीं आई, और फिर भी सिर बाहर ही रहेगा। तो हैव ए गुड स्लीप, इफ यू टेक ए गुड स्लीप, तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे और आप अच्छा फील करेंगे। अच्छा फील करेंगे तो स्ट्रेस तो होगा ही नहीं। सो एंड फॉर दिस यू चेंज योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मतलब आप अपनी, देखिए इस बात का, जैसे मैंने कहा मन का इफेक्ट शरीर पे आपने अभी देखा ही है। मन का इफेक्ट शरीर पे पड़ता है, शरीर का इफेक्ट मन पे पड़ता है, वाइस वर्सा। तो लाइफ स्टाइल अगर आपने चेंज किया, नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, लेट नाइट तक सोते रहते हैं, सुबह लेट तक उठते रहते हैं, तो आपने अपना पूरा लाइफ स्टाइल अपने आप का चेंज कर रखा है। तो अभिषेक, आर यू ऑन द लाइन? यस सर। सन, सुबह राइजिंग सन का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ राइजिंग सन? सर ऑरेंज। ऑरेंज, अच्छा। दीक्षा, जी व्हाट इज द सर। कलर ऑफ राइजिंग सन का कलर क्या होता है? सर रेड या ऑरेंज, मतलब मिक्सचर रहता है रेड और ऑरेंज का। अच्छा, और केसरी रहता है सर, केसरी। तनु नरवार, तनु, कुणाल। सर रेड होता हाँ है बताओ, क्या होता है राइजिंग सन का कलर? रेड सर, रेड। है रेड सर, रेड और ऑरेंज का रेड। मिक्सचर है। अच्छा, अरुण, यस सर। बताओ Yes, व्हाट इज sir. द कलर ऑफ राइजिंग सन? सर डिपेंड करता है सर वेवलेंथ पे। आप बताओ, आपने क्या देखा है?
सर वही है सर, रेड येलो ऑरेंज के भी में कोई सा कलर होता है या मिक्सर ऑरेंज, होता अच्छा है? ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने, ये लोग इधर जो पूछा था, ये किससे पहले किससे पूछा था मैंने? अभिषेक से? यस सर। पहले किससे पूछा था? अभिषेक से सर। हाँ अभिषेक, और किससे पूछा था? मैं, दीक्षा। दीक्षा से। हाँ अभिषेक और दीक्षा। तो आप लोग करीब मॉर्निंग में 6:30-7 के बीच में उठते हैं, 7 बजे के अराउंड? सर 6:30। 6:30। और ये कुणाल, आप करीब 5:30, 5 बजे के आसपास उठते हैं? हाँ सर, 4:45-5 बजे के आसपास सर। 5 बजे उठते हैं। और ये, और किससे पूछा था? ये 6 बजे के आसपास उठते हो अरुण? सर नहीं सर, डिपेंड करता है कितने बजे सोया हूँ। हाँ, फिर एग्जैक्टली भी 6 घंटे बाद ऑन एन उठता हूँ एवरेज सर। हैं? सर एग्जैक्टली 6 घंटे बाद उठता हूँ सर। कितने? सर सोने के बाद 6 घंटे बाद उठता हूँ सर। नहीं, फिर भी ऑन एन एवरेज नॉर्मली? सर 1-2 महीने से तो 5 बजे उठ रहा हूँ सर। अच्छा, तो देखिए नॉर्मली, देखिए मैंने जो बताया कि ये लोग 6, 6:30 पे उठते होंगे, ये 5 बजे उठता होगा, ये कैसे बता दिया? ये इस तरह बताया कि एक्चुअली द राइजिंग सन, जो सबसे अर्ली उठेगा उसे रेड दिखाई पड़ेगा सन, उसके बाद धीमे धीमे ऑरेंज, केसरी, येलो, और फिर कुछ लोग तो जो 8-9 बजे उठेंगे उसे तो लाइट येलो और वाइट दिखने लगेगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। तो देखिए, जबकि आपको अच्छी तरह कहा गया है अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, अगर आप रात में अच्छी तरह जल्दी सो जाएंगे, गहरी नींद आएगी। ये कहते हैं जिस तरह सन उठता है उसी तरह अगर आप उसको डीप स्टडी करेंगे, सन के साथ अगर आपकी बॉडी का ट्यूनिंग होगा तो आपका हेल्थ स्वस्थ रहेगा, मानसिक एंड शारीरिक। तो अगर आपने सुबह अर्ली 4:30 पे उठ गए, योगा किया, एक्सरसाइज किया, मेडिटेशन किया और सूर्य नमस्कार किया, और जैसे जैसे सन उठता जाएगा वैसे वैसे आप भी उठते जाएंगे। मीन्स मैक्सिमम सन पीक पे कब होता है? 1-2 बजे। उस समय आपका एनर्जी भी पीक लेवल पे होगा। एनर्जी मतलब फिजिकल काम करने के लिए। फिर शाम को धीमे धीमे आप उसको स्लीपिंग मोड में जाएंगे। तो उस समय आपका दिमाग भी, जब राइजिंग सन होगा, आपका माइंड भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा होगा। आपका मेंटल स्टेटस, वर्क कल्चर, हेल्थ कल्चर, एवरीथिंग विल बी इम्प्रूव। लेकिन इस समय जो हो रहा है, स्थिति क्या हो रही है, आजकल लोग क्या हो रहे हैं? निशाचर। निशा माने रात में सोने वाले, रात में जगने वाले, चरने वाले और दिन में सोने वाले। तो ये लाइफ स्टाइल की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इफ यू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल्स, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो स्ट्रेस, उसकी वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस आ रहा है। तो इस पर भी अगर आप काम करेंगे, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें। देखिए बहुत बार क्या होता है, आपका आईक्यू, जैसे मैंने कहा, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। आईक्यू लेवल मतलब आप इंटेलिजेंट एनफ हैं, और आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है ये अच्छा है ये खराब है, लेकिन फिर भी आपके पास शक्ति नहीं है करने की। शक्ति भी है तो एक दिन कर लेंगे, 2 बार नहीं कर पाते हैं, फिर सोचते हैं छोड़ो क्यों करना। तो छोड़ो क्यों करना मतलब आप अपनी आदत से मजबूर हो जाते हैं। अगर बट इफ़ यू डेवलप योर गुड हैबिट्स, अगर आप अच्छी हैबिट्स बना लें, फिर आपको ना तो दिमाग लगाना पड़ता है, ना आईक्यू लेवल यूज करना पड़ता है, ना उसमें आपकी आदत में आ जाता है। जब आपकी आदत में आ जाएगा तो बार बार आपका ना एनर्जी वेस्ट होगा, ना दिमाग वेस्ट होगा। फिर आपकी वो चीज़ें रूटीन में होने लगेंगी। जब रूटीन में होने लगेंगी, फिर आपको वो चीज़ें पता भी नहीं लगेंगी। जो सिचुएशंस हैं जो अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो आपको पता भी नहीं लगेंगी वो सिचुएशन कहाँ गई। तो इसलिए अपनी गुड हैबिट्स भी क्रिएट करें, और अपना एक एक हॉबी, अच्छी हॉबी। अगर आप खाली बैठे हैं, बहुत से लोग होते हैं खाली बैठने से ही टेंशन होता है, खाली बैठने से टेंशन होता है। सो बेटर टू डेवलप योर गुड हॉबी, अच्छी हॉबी। किसी का मान लो म्यूजिक का हॉबी है, किसी को म्यूजिक सुनने का है, किसी को गाने सुनने का है, किसी को बैडमिंटन खेलने का है, किसी को, तो डिफरेंट हॉबीज। अगर आपकी एक हॉबी होंगी तो खाली दिमाग में, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर है, तो वो आपका खाली दिमाग, अगर आपने हॉबी डेवलप कर ली तो वो एक नेगेटिव चीज़ें आपके पास से नहीं आएगी।
तो दीज आर द फ्यू टिप्स कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करें। लेकिन अभी भी आपने ये देखा है कि इन सब के ऊपर ये सारी की सारी जो चीज़ें बताई हैं, ये सारी की सारी, देखिए जब तक आप जैसे रिलेशनशिप विद द सेल्फ है, अंडरस्टैंडिंग समथिंग, हैव ए गुड स्लीप, ये सब माइंड पे। आप कहोगे नींद आती नहीं, मैं क्या करूं? बहुत बार यही तो कहेंगे, मैं नहीं नींद आती तो क्या करूं? या आप कहोगे क्या भाई मैं अपने को नहीं समझा सकता, या मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, या आप कहोगे अब मेरी बुरी आदत पड़ गई है, मैं उसमें इम्प्रूव भी नहीं कर सकता, क्या करूं? लेकिन आपने देखा ये सभी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सभी चीज़ें माइंड पे डिपेंड कर रही हैं। दैट्स वाई शुरू में ही कहा था ऑल द डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक, सभी मानसिक बीमारियां हैं, वही बाद में चल के फिजिकल बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग है मतलब माइंड से ही बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, मन में ही बहुत सारे विचार, जैसे कहा था अगर आपकी संकल्प शक्ति, अगर आपके अच्छे विचार हैं तो अच्छी संकल्प पैदा होंगे, खराब विचार हैं तो खराब संकल्प पैदा होंगे, और खराब संकल्प जब पैदा होंगे तो उससे टेंशन होना शुरू हो जाता है। तो अब एक तो ये है कि हमें अपनी माइंड की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, व्हाट इज द पावर ऑफ माइंड। दूसरा देखिए, जब बैटरी, जैसे आपने देखा ना, इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाए या आपकी लैपटॉप इसकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो क्या करते हैं? पवन कुमार, आर यू देयर? पवन, मोहनलाल, यस सर। हाँ, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो क्या करते हैं? सर दोबारा रिचार्ज कर देंगे उसको। रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करने के लिए क्या करते हैं? कहाँ पर रिचार्ज करते हैं? सर प्लग लगा देंगे उसमें। हाँ, पावर हाउस जो हमारा सप्लाई आ रही है उसमें लगाते हैं। यस सर। और सप्लाई नहीं हो तो क्या करते हैं? सप्लाई नहीं हो तो कहाँ लगाते हैं? पावर बैंक में लगा देते हैं। हाँ, बैटरी बैंक में लगा देते हैं, या घर में एक इन्वर्टर का स्विच है तो उसमें लगा देंगे। तो अगर पावर बैंक में अगर सप्लाई सपोज 10 दिन तक नहीं आए तो बैटरी बैंक कब तक काम करता रहेगा? कुछ घंटे के लिए काम करेगा सर। कुछ घंटे के लिए कर पाएगा। और एक इन्वर्टर है घर में, इन्वर्टर में एक स्विच है, वो कितने दिन तक काम करता रहेगा? वो कुछ दिनों तक काम करता रहेगा। हाँ, तो लेकिन अगर सप्लाई में लगा है तो वो हमेशा काम करता रहेगा। सप्लाई इज ऑलवेज देयर। तो पावर हाउस में अगर लगा है तो इसी तरह अगर आज के समय में सभी ह्यूमन बींग्स का अपना बैटरी बहुत डाउन हो गया है। बैटरी डाउन का मतलब क्या है? हम बहुत जल्दी रिएक्टिव हो गए हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा है, बहुत जल्दी टॉलरेंस पावर कम हो गई है, जिसकी वजह से और हमारा इनर स्ट्रेंथ कम हो गया है। इनर स्ट्रेंथ कम होने से हमारे अंदर टेंशन का लेवल बढ़ गया है, टेंशन की वजह से सारी बीमारियां बढ़ गई हैं। तो हमें अब ज़रूरत क्या है कि अपनी बैटरी को पावर हाउस में कनेक्ट करना है। एक तो ये हुआ आपको एक दूसरे से, जैसे सपोज करिए आपको किसी पे फेथ है, जैसे बच्चा जब परेशान होता है तो माँ बाप की गोदी में जाके रिलैक्स फील करता है नहीं करता? छोटा बच्चा है 5 साल का, तो उसे किसी बात को लेकर परेशानी आई तो क्या करेगा? माँ बाप की गोदी में उसे लगेगा प्रोटेक्टिव फील हो जाता है। ऐसे ही जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप 25 साल के हैं, तो आपके आसपास आपके गार्जियंस हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो भी हैं, वेल विशर हैं, फ्रेंड्स हैं, ताकतवर लोग हैं, वो अगर बैठे हुए हैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम थोड़ी कम लगेगी। लगती है कि नहीं लगती है सर? हाँ, क्यों कम लगती है? क्योंकि उनके पास भी थोड़ी पावर है जिस पर आप फेस कर रहे हैं। लेकिन इफ यू आर कनेक्टेड विद, तो उनसे पावर कितना मिल सकती है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हमेशा वो सारे लोग हमेशा आपके पास नहीं होंगे, या उनकी कलेक्टिव पावर भी आपकी प्रॉब्लम्स को जरूरी नहीं है फेस कर पाए। तो उसके लिए इफ देयर इज सम इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी,
अगर कोई इनफाइनाइट सोर्स है, पावर ग्रिड, जिससे आप कितना भी पावर ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इससे कितना भी पावर, 1 किलोवाट का मशीन चला लें चाहे 100 किलोवाट का मशीन चलाएं, हमेशा इट इज अवेलेबल सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्विचेस। हमारे जो स्विच हैं, जो प्रोटेक्टिव सर्किट हैं, उनको ध्यान में अगर हम रखें तो हम ग्रिड से कितनी भी पावर ले सकते हैं। आपके हिसाब से तो जितनी एक व्यक्ति को पावर चाहिए उसके कंपैरिजन में कहें तो इट इज इनफाइनाइट पावर विद द ग्रिड, ऑल्दो इट इज नॉट इनफाइनाइट, लेकिन आपको जितनी चाहिए उसके कंपैरिजन में तो आप इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही इफ देयर इज सम सोर्स, एक तो हमें जैसे हमने कहा कि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप एनर्जी में मेंटल अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं मेडिटेशन के थ्रू और अदरवाइज ये गुड हैबिट्स के थ्रू, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो आपने देखा ओवरऑल, देखिए अब ये करें कैसे, कहने में तो आ रहा है कि आप अभी क्या कहा, अच्छा सोचें, अच्छा बिहेव करें, अच्छे विचार लाएं, पॉजिटिव थॉट्स लाएं, अच्छा बिहेवियर करें, द कॉपी पेस्ट बिहेवियर को यूज करें, स्माइल करें, अच्छी नींद लें। ये कहना, अब आप कहेंगे ये कहना तो आसान है, लेकिन ये हो कैसे, ये नहीं पता ये हो कैसे। ठीक है, आपको पता है ये कैसे कैसे कर सकते हैं। दीपिका, आर यू प्रेजेंट नाउ? आ गए या नहीं? हाँ, नहीं आए अभी तक। अजय, अजय, नो। नितेश, नितेश, यस सर। हाँ बताओ, क्या काम है, क्या पूछा? देखिए, जब भी कहते हैं ना, ये उपदेश देना तो आसान है, कहना आसान है, ऐसा करो तो आपका स्ट्रेस भाग जाएगा, या ऐसा करोगे तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जैसे जैसे अभी हमने बहुत सारी चीज़ें बताई, डेवलप सम हॉबी, चार्ज योर सेल्फ विद कनेक्टिंग द हाउस पावर हाउस, कंट्रोल योर थॉट्स स्पीड। जैसे कहते हैं आप अपनी स्पीड में आपके जो व्यर्थ संकल्प हैं उन्हें ना करें, केवल पॉजिटिव संकल्प करें, व्यर्थ संकल्प ना करें। लेकिन अब आप क्वेश्चन होगा ऐसा कैसे, आप किसी के दिमाग में फालतू के विचार आ रहे हैं तो कैसे अपने आप पे काबू करें, कैसे व्यर्थ संकल्प को रोके, अपनी पावर को कैसे पहचाने, पावर ऑफ माइंड। एक ये अपने आप को खुश रखा है तो कैसे रखें, ये सब चीजें बताइए, इससे आपका टेंशन लेवल कम होगा। लेकिन क्वेश्चन ये, यही तो क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा नींद लें या अच्छा स्माइल करें तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये कैसे करें, हाउ टू बी, ये होगा कैसे। देखिए, ये देखिए, हैव ए गुड स्लीप, अच्छी नींद ले रहे हैं तो क्या लग रहा है, जिसके बच्चे को चेहरे को ही देख के आपको पता लग रहा है कि ही विल बी हैप्पी, नींद में भी खुश है तो उठने के बाद भी ये खुश होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसा सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार चल रहे, सबकॉन्शियस मीन्स जब वो नींद में है तभी भी कुछ विचार चल रहे होते हैं हमारे, दो, एक तो कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक इनर कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में जब आप सो रहे हैं तभी भी विचार चल रहे होते हैं, तो उस समय अगर हम पॉजिटिव नीड है, बहुत कम विचार होंगे तो पॉजिटिव एलिवेटेड विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत कम, अगर आपके सपोज करिए 30-40 विचार चल रहे हैं तो ये चेहरा का शक्ल डिफरेंट होगी। अगर आपके 2-3 विचार है तो बहुत अच्छे, आपको लगेगा जैसे, इसको देखो क्या लग रहा है, जैसे मान लो अपनी माँ की गोदी में सो रहा है, मम्मा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, तो ऐसा विचार आ रहा होगा तो ये इस टाइप की नींद होगी। ऐसा होगा कि मुझे दूध नहीं मिल रहा है तो दूसरा विचार होगा। तो ये उसी तरह के इरिटेटेड थॉट्स पैदा होंगे इसके, और बहुत फास्ट स्पीड पे होंगे। तो ये इस पे मीन्स थॉट्स की स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। ये देखिए, गुड स्लीप, हैप्पी, इफ यू हैव द, कहते हैं खुश रहिए, हंसिए, कॉपी पेस्ट बिहेवियर, आप हंसेंगे तो दूसरा भी हंसेगा, जैसा चेहरा आप बनाएंगे वैसा ही चेहरा सामने वाले का, उसके साथ एनर्जी क्रिएट होगी। तो सबसे बात क्वेश्चन ये थी, हाउ टू बी, ऐसा करें कैसे, कैन यू सजेस्ट समथिंग। हाँ मयंक, दीक्षा। जी सर। हाँ, आप सजेस्ट कर सकते हैं, जो ये कहा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन वो हो नहीं रहा है, उसके लिए क्या करें।
सर लाइफ शेड्यूल अच्छी होनी चाहिए और बिजी रहना चाहिए। हाँ, तो कैसे? उसके लिए भी ताकत चाहिए। देखिए, आपको समझ में आ जाए कि आप जल्दी अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, लेकिन फिर भी नहीं होता। और आपने देखा ऑल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें हैं, सारी माइंड से स्टार्ट हो रही हैं। नहीं हो रही। तो सारी प्रॉब्लम जब माइंड से स्टार्ट हो रही हैं, तो हमें पावर ऑफ माइंड सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, हमारी मन की शक्ति क्या है। मन की शक्ति अथाह है। अगर आप देखोगे, आपके वेद शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपने ये सोच लिया कि ये, जैसे कहा था रावण ने सोच लिया कि इसको हिमालय को पीछे खिसकाना है, तो उसने 1 इंच पीछे खिसका दिया। तो मन की शक्ति अथाह है, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। उससे पहले लेट अस हैव ए सिचुएशन। हाँ जी, ठीक है मयंक। हाँ, मोहनलाल कुछ कहना है? हाँ सर, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हाँ, या सुबह रनिंग कर सकते हैं। यस, लेट अस हैव दिस वन एग्जांपल। आजकल ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, कोविड-19 सिचुएशन है, इसमें देखिए बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि भाई वैक्सीन्स नहीं आ रही हैं, नई बीमारियां आ गई, वाइट फंगस आ गया, ब्लैक फंगस आ गया, डॉक्टर्स ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स ब्लैक मेलिंग मार्केट में हो रही है, हॉस्पिटल में इतना पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, चाइना ने वायरस फैला दिया। इस टाइप की चीज़ें ये क्या कर रही हैं, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प जो दिमाग में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ें तो हमारा स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना व्हाट इज इन अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में क्या ये सारे विचार हमारे कंट्रोल में हैं, एंड व्हाट आर नॉट इन अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। ये सारे विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है। और हम क्या करते हैं, वरी ऑफ पास्ट फ्यूचर, कि भाई देखो ये घटना हो गई, इतने लोग एक्सपायर कर गए, ये डाटा है, फ्यूचर में क्या होगा, अब आगे बिजनेस सही होगी कि नहीं होगी, एग्जाम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएगा, या घर में आटा खत्म हो गया, मार्केट बंद हो गया, आ पाएगा कि नहीं, पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी कि नहीं है। इस टाइप के विचार बहुत सारे आ रहे होते हैं। तो इनमें व्हाट इज इन, हमें देखना क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में देखना है व्हाट इज इन अवर कंट्रोल, व्हाट इज नॉट इन अवर कंट्रोल। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो व्यर्थ संकल्प हैं, उन्हें सोचना छोड़ दो। अब जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं उसके हिसाब से हमें तैयारी करना है। तैयारी करना मतलब हमें टारगेट बनाने हैं। और क्या डर हुआ, फ्यूचर का डर क्या होता है फ्यूचर में, कि हमारा जो हमने टारगेट्स बनाए हैं वो मीट होंगे कि नहीं होंगे। एग्जाम नहीं होगा तो हमारा अगला साल में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कंपटीशन का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये चीजें दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है हमें प्लान फॉर सेफ्टी। ये तो फालतू की न्यूज ना देखें, जैसे व्यर्थ संकल्प है, ये व्यर्थ, नो मच न्यूज, केवल हमें जो फैक्ट्स हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है, इस तरह के व्हाट्सएप वायरल हो जाते हैं जिसका कोई गलत इंफॉर्मेशन देकर वायरल कर दिया इंफॉर्मेशन, और वो फैलते रहते हैं, वो फियर क्रिएट करते हैं। तो हमें एक ऑथेंटिक मीन्स सपोज ICMR से जो न्यूज है, और एम्स से जो न्यूज है, DGCA से जो न्यूज है, उस न्यूज को लेने के बाद में एक्चुअल न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज को लें, और जो गलत न्यूज है, अफवाहें हैं, उस पर ना जाएं। वो हमारा हो गया रॉ डाटा, उसको हमने हटाया। जो अफवाह है, जो फालतू की न्यूज है, उसको तो हटा ही देना है, वो व्यर्थ संकल्प है। उस पर विचार करने के बजाय जो एक्चुअल डाटा लिया, एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस लिया, उसके हिसाब से फिर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने प्लानिंग करते हैं, प्लान फॉर सेफ्टी, कि अब हमारा अगर इनकम में लॉस होगा तो कितना लॉस हो जाएगा, और हमें क्या करना है। अगर लॉस ऑफ इनकम है उसको कैसे मीट करेंगे। घर की जो जरूरत की चीजें हैं, मेडिसिन को एडवांस में लेके, कौन सी मेडिसिन लेके हमें एडवांस में परचेज करके रखना है, घर की कौन सी जरूरत की सामान है उन्हें लेके रखना है। अगर इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपने ऑक्सीमीटर ये सारा परचेज करके रख लिया है, ऑक्सीमीटर हो गया, जिंक कोविड हो गया, इवरमेक्सन टैबलेट हो गई, या हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट हो गई, आपने लेकर रख लिया। उसके बावजूद भी अगर सर्कमस्टेंसेस आई तो इतना फंड्स हमने बीमारी के लिए रखा हुआ है, वो हमें
इमरजेंसी प्लान फॉर सेफ्टी एंड इमरजेंसी। इसके लिए अपने आप को, ये नहीं है कि केवल अफवाहों में जियो और एक दूसरे पर आरोप लगाओ, फियर क्रिएट करो, अपने लिए फियर और दूसरे के लिए फियर, वो क्रिएट करने के बजाय आपने ये करना है। तो अगर आपने ये कर लिया अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, अगर ये किया है तो ये चीज़ें अपने आप ही आपका फियर कम होगा, क्योंकि आप फालतू की चीज़ें सोच भी नहीं रहे हैं। जो चीज़ें आपने न्यूज़ से देखा हुआ है उसके हिसाब से अपने आप को तैयार किया हुआ है। तो ये आपका हो गया डिजायर माइनस कैपेबिलिटी, ये नेट इफेक्ट हो गया। अब इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, आपने सोशल मीडिया के थ्रू फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिलेटिव से कनेक्ट रहना। कनेक्ट रहने से क्या है, आप एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपने जो रिसीव की है वो एक दूसरे को धैर्य बनाएंगे, नहीं नहीं चिंता की कोई बात नहीं है, सब चीज़ सही हो जाएगा, ऐसा आप विचार क्रिएट करेंगे और टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे, फालतू के विचार आकर एक पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे। अपने फिर इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना, ये सब इनर स्ट्रेंथ है, इससे आपका इनर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगा। इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी के लिए क्या करना है, फिजिकली क्या करना है, फिजिकली आपने क्या करना है, काढ़ा, तुलसी या विटामिन सी, अच्छा फ्रेश फूड, या ये मार्केट का फूड नहीं खाना है, स्टेल फूड नहीं खाना है, फ्रेश खाना है, एनर्जेटिक फूड लेना है। तो ये अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है, माइंड का इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है, मतलब अच्छे विचार क्रिएट करने हैं। तो जिससे एज द माइंड सो द, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। ये आपने बहुत सुना होगा, जैसा एक गाना भी है, जैसा हम सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। तो अच्छा सोच क्रिएट करना है। तो इससे आप कोई भी प्रॉब्लम, नॉट ओनली दी कोविड-19 बट एनी प्रॉब्लम यू कैन ओवरकम। आपके ऊपर टेंशन और ये सब चीज़ें क्रिएट नहीं होंगी। अब सारा स्टडी करने के बाद में, सारा देखने के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सबसे ज़्यादा जो दामोदार है, जो जिसके ऊपर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, वो है ये माइंड का सबसे ज़्यादा रोल है। तो हमें, और अभी आपने देखा है तो माइंड की शक्ति अथाह है, इनफाइनाइट है। आपने देखा होगा माइंड से बहुत बार आपने देखा है कि बॉडी को लाइट कर लेते हैं, हवा में भी आपको देखेंगे उड़ते हुए दिखाई दे रहा है, या बहुत से आपने धर्मशास्त्रों में देखा है कि माइंड की पावर इनफाइनाइट है। तो हाउ टू इम्प्रूव द माइंड पावर, तो अब तक जो डिस्कस किया है इसमें आपको थोड़ा बहुत अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं और अपने व्यूज रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। यस, अपने व्यूज। हाँ भाई, पवन कुमार जी, पवन, आर यू देयर? यस सर। हाँ पवन, बताओ, आप सम अप कर सकते हो, आपने क्या आज जो डिस्कशन मीटिंग में हुआ आपने उससे क्या लर्न किया, सम अप कर सकते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है जो आपने लर्न किया है वो आप इनकलकेट भी कर पाएँ अपने ऊपर। लर्न का मतलब है नॉलेज होना, नॉलेज को अपने ऊपर धारण करना इट इज मोर डिफिकल्ट देन द नॉलेज। नॉलेज से ज़्यादा से मुश्किल है उसको धारण करना। तो नॉलेज होना अलग चीज़ है, आप जान जाएंगे सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो मैं केवल अभी बात कर रहा हूँ नॉलेज का, हाउ टू इम्प्लीमेंट, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे अपने मन की पावर को बढ़ाना है, वो दूसरा इशू है। लेकिन आपने नॉलेज क्या गेन किया है, शॉर्ट में अगर आप 1-2 मिनट में कुछ बताना चाहें तो बताएं। हाँ पवन। यस सर। हाँ बताओ। यस सर, हमें अपने आप को कूल रखना है सर, कोई भी सिचुएशन हो सर। अच्छा, और स्ट्रेस नहीं लेना सर हमें। मैं पार्डन। हाँ पवन। पॉजिटिव रहे सर, अच्छा सोचें सर। अच्छा, और सर जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें सर। हाँ मितेश, हाँ मितेश कुछ कह रहे हैं, एक बार संतराम प्लीज वेट। सर इनर स्ट्रेंथ
इनर स्ट्रेंथ को वेट स्ट्रॉन्ग रखें सर। इंक्रीज करना है। हाँ संतराम। सर जैसे जो भी हो रहा है उसको पॉजिटिव वे में सोचें, और जैसे कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको मतलब उसके सामने मुस्कुराएं सर, वो सर ऐसे टेक इट इजी, मतलब आसानी चीजों को आसान वे में लें, उसको मुश्किल ना बनाए। एडुकेट रेस्ट करें सर, टाइमली सोएं टाइमली उठें। हाँ गुड गुड, उससे आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो देखिए ये आपने देखा। हाँ दीक्षा, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर पूछना था हाँ पूछो। सर, थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे ला सकते हैं? हाँ ये तो मैंने क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ अभी पेंडिंग, अगले लेक्चर में इसी पे, इसलिए तो मैंने पेंडिंग छोड़ा कि जो कहना आसान है करना मुश्किल है। थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लाएं, मीन्स ये सारी ये चीज़ें देखो। थॉट कौन क्रिएट करता है? थॉट इज क्रिएटेड बाय माइंड। पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग कौन क्रिएट करता है? ये माइंड करता है। तो और अभी आपको बताया पावर ऑफ माइंड इज इनफाइनाइट। हम चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप चाहें बैठे बैठे अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि बीपी लेवल अगर अभी मेरा 90 और 150 है, 10 मिनट के मेडिटेशन करने के बाद में दोबारा से मेजर करूंगा तो 80 और 120 आ जाता है। ये प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूँ, प्रैक्टिकली मैं करके देखा हुआ हूँ, ये चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन करें कैसे, ये अभी उस पर डिटेल डिस्कशन हमने छोड़ा हुआ है। पावर ऑफ माइंड क्या है उस पर नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उसमें डिस्कस करेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन पूछने से पहले जैसे मैंने कहा था हर एक स्टूडेंट तीन क्वेश्चन और उनके आंसर अपने अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव को देगा, और आंसर अगर नहीं भी हो तो केवल क्वेश्चन देगा। तो एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा आपका ये 90 क्वेश्चंस का। ये जो आपके क्वेश्चंस और आंसर होंगे जो ब्लैंक होंगे वो मैं फिलअप कर दूंगा। हाँ संतराम प्लीज वेट। तो उसके बाद में ये आपके की नोट की तरह काम करेंगे। जब आपका जैसे टेक्स्ट में आएगा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्ट्रेस एंड हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, हाउ टू रिड्यूस दिस, तो आपको वो जो की पॉइंट हैं वो लिखने में बहुत आसान रहेगा, टेक्स्ट लिखने में बहुत आसान रहेगा। तो आप ऐसा करेंगे, उसके बाद वो मैं उसको फाइनल करके आपके जो गूगल क्लासरूम है उस पर अपलोड कर दूंगा। तो जस्ट ए मिनट।